I welcome you all to the panel discussion of JCI Jaipur Rainbow panel discussion about cybercrime. I welcome all the dignitaries, all the leaders of JCI. With welcoming, I welcome all the panelists of the day: JC Chirag Goyal, Mr. Parminder Singh, and Mr. Nishchit Dikshit sir. With this, I think we should start the panel discussion. Before starting the panel discussion, I would like to introduce you all to the panelists of today, starting with the dynamic personality and the first panelist of the day, JC Chirag Goyal. He's a technology expert, we should say, a certified trainer and a forensic investigator. He's a cybersecurity expert with 9 years of experience in the IT industry with specialization in network securities, mobile application securities, system hacking, and web securities. Along with all these, Chirag is also a faculty of cyber enforcement of Delhi Police and Rajasthan Police. He also begs the experience of investigation in case of involving cyber forensic in collaboration with various police departments. He has delivered training sessions of the same in Department of IT, DRDO, Ministry of Defense, India. He has also been a guest faculty of New York University, an experienced cyber security trainer. He has imparted corporate trainings at Tata Terrans and Retail Hands and Trade Group. I welcome the very dynamic personality and the technology expert and the cyber law expert, JC Chirag Goyal. We welcome Chirag sir. We are very happy that you are a part of the panel, and we definitely hope that we have a lot to learn from you. Talking about the thank you, Mama. Thank you, sir. Talking about cyber law, and the panelist for today, the second panelist of the day is Advocate Nishchit Dikshit. He is a trained personality in cyber law, constitution laws. He is practicing advocate since 2001, handling civil cases and criminal cases, including cyber law and cyber crime acts. He's into different law academies, into telecommunication law, corporate and economic offenses, electricity law, media and advertising law, intellectual property right laws, real estate and banking laws. By professional membership, he is a member of the dignitaries of Supreme Court Bar Council Association, New Delhi, Rajasthan High Court Bar Council Association, Jaipur, Bar Council of Rajasthan, Jodhpur, in different years in 2001, 2001 and 2007 respectively. He has education holding of BSc Honors, LLB, MBA, LLM of cyber law and cyber crime. I think we have the best of the panelists here, which we'll always have a great panelist. And thank you, Hitesh, for getting Advocate Nishchit Dikshit in the panel. I welcome Nishchit Dikshit sir for this wonderful afternoon and sharing a lot of experience with us. Sir, I welcome you to the panel of today. Thank you. Thank you so much, sir. Talking about the panel experts, the third panel of the day is a very interesting person who has a lot of knowledge about cyber. He's a helper of the society. He's a bachelor of he's done his bachelor's in science. He's a certificate in computing from Indira Gandhi National Open University in New Delhi. Post graduation for cyber law from the same Indira Gandhi National Open University. Currently, he's been posted as the direct recruitment on the post of sub inspector in Rajasthan State Police in November 1998. Motor and a lot of things about him. Let's discuss something more and very interesting thing about him. The specialization which we hold today is he's a cybercrime police station SOG in Rajasthan Police Jaipur. He has served previously in many other ways to the country as a superintendent of police district Bhilwara, state crime record bureaucracy Rajasthan Jaipur, superintendent of police officer district Dungapur Rajasthan, state crime record bureaucracy Rajasthan Jaipur, crime branch Rajasthan Jaipur, ICT RTI cell police headquarters Rajasthan Jaipur, cybercrime police station Rajasthan Jaipur. Presently, he's a cyber crime police station at SOG Rajasthan Jaipur. I welcome this dynamic personality, a very renowned personality of Jaipur, Mr. Parminder Singh sir. We welcome you, sir, to the panel.
We are very happy that you're a part of the panel, and I'm sure that we have a lot to learn from you. I welcome all the three panelists of the day. I hope to have a wonderful discussion on this panel. With the discussion of the panel, thank you so much, Parminder sir. Since we all know that we are here for a panel discussion to know a lot about cyber crime के बारे में हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पता करनी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता होंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें पता नहीं होंगी, बहुत सारे ऐसे मिथ हमने साइबर क्राइम को लेके अपने दिमाग में बना रखे होंगे, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमने व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू पढ़ी होंगी जो भी सही नहीं होंगी। तो इन सारी चीजों को क्लियरिफाई करने के लिए जितने भी क्वेश्चंस आपने हमसे पूछे हैं उन सबके जवाब देने के लिए आज हम आपके साथ आए हैं इस डिस्कशन में। आई एम श्योर कि इस डिस्कशन के बाद आपके पास जरूर बहुत कुछ होगा सीखने के लिए, बहुत कुछ होगा समझने के लिए कि क्या एग्जैक्टली साइबर क्राइम है, किस तरीके से ये अनएथिकल है, किस तरीके से आप इसके थ्रू आउट हो सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। एंड लेट्स start with the first discussion with the first panelist of the day, a person whose introduction is not enough to know about him. I think we should hand over the floor to the person who will be talking about who are the hackers of cybercrime, who are the social engineers, mail, how the thing about MITM works, data privacy works, how social media is affecting, how the fake identification works, what is card frauds, and what is cryptocurrencies. All these questions will be answered, and we'll get to know a lot about these particular topics. I request the first panelist of the day, JC Chirag Goyal. आप हमें बताइए इसके बारे में, and we hand over the screen to you, sir. Screen is all yours. Over to Chirag, sir. Thank you, Zui ma'am. Thank you for the wonderful introduction. Just let me share the screen first. I think my screen is visible. Yeah. So thank you everyone for inviting me in this panel discussion. So the today's agenda for from my side is to how hackers hack the systems and what the technologies and methodologies they use. Okay, किस तरीके से कौन सी एक्टिविटीज वो अप्लाई करते हैं और कौन सी बेसिक चीजें हैं जो हमको यदि पता है तो जिससे हम नॉर्मल रूटीन में अपने आप को सेव कर सकते हैं एज अ साइबर विक्टिम बनने से। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम माय साइड इज व्हाट द थिंग सोशल इंजीनियरिंग इज। सो बेसिकली सबसे ज्यादा अभी जो रिसेंट में क्राइम्स हो रहे हैं वो सारे क्राइम सोशल इंजीनियरिंग रिलेटेड है। मोस्टली आप लोगों को कॉल्स आती है, मोस्टली आप लोगों को फेक कॉल्स, स्पैम कॉल्स आती हैं, आपको फेक मेल्स आते हैं जिस पे आप क्लिक करते हैं और आपका मेल अकाउंट कंप्रोमाइज हो जाता है, आपके सिस्टम का एक्सेस किसी और के पास चला जाता है, आपका पासवर्ड किसी और के पास चला जाता है। ओके, सो बेसिकली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। जैसे मुझे सपोज किसी के बारे में पता करना है, सपोज आई वांट टू इंक्वायर अबाउट परमिंदर सर एंड any other panelist. Okay, so उनके बारे में मुझे पता करने के लिए I'll search on Google, I'll call them, I'll ask, suppose he is a businessman, I'll ask कि मेरा इस तरीके का मेरा भी बिजनेस है and I'll send you a malicious email. आप उस मेल को ओपन करेंगे and I'll get the access of your mail account or your system. Okay, so basically there are three types, तीन तरीके से सोशल इंजीनियरिंग में वर्किंग होता है। पहला कि इन पर्सन, बहुत बार क्या होता है कि मुझे किसी पर्सन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो उस पर्सन से फेस टू फेस हम लोग मिलते हैं, उस पर्सन से फेस टू फेस मिलके उसको थोड़ा कम्युनिकेशन उससे करके एंड विल स्टील द इंफॉर्मेशन, हम उससे और इंफॉर्मेशन को रेगुलरली देते रहते हैं। दूसरा, हम उसको फ़ोन कॉल करते हैं जो अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है। आपको आइडिया, वोडाफोन और भी मल्टीपल जगह से आपको कॉल्स आते हैं कि आपका सिम अपग्रेड करना है, आपको इस तरीके से हम आपका सिम अपग्रेड कर रहे हैं, आपको
फ्री इतने का लोन दे रहे हैं, सो आपको जस्ट इस लिंक पे क्लिक करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप इजीली उसमें कंप्रोमाइज हो जाते हो। आप किसी भी तरीके से उसमें जैसे ही आपने इन्फॉर्मेशन दी, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुंच जाती है, और इन्फॉर्मेशन पहुंचने के बाद वो आपकी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज करता है, एंड देन आपका मोस्टली बैंक अकाउंट्स आपके खाली हो जाते हैं। थर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि ईमेल्स आपके फोन पे, व्हाट्सएप एंड इस तरीके के कोई फेक मैसेजेस आते हैं, आप चेक करते हैं कि ओके आपको इतने रुपए रिवॉर्ड मिला है, ओके, and you have to just click on the link, you have to just submit your card details and you will get credited। आप उस पे क्लिक करते हो, ठीक है, उस ईमेल पे, और आपको लगता है कि वो बिल्कुल जेन्युइन ईमेल है, और आप उस ईमेल पे क्लिक करते हैं और आप कंप्रोमाइज हो जाते हैं। बेसिकली सबसे ज्यादा अभी जो क्राइम चल रहे हैं वो ये है। इसके अंदर डिफरेंट, सोशल इंजीनियरिंग के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्राइम्स है, लाइक फिशिंग, विशिंग, ओके, सिम स्वैपिंग, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम्स इन दिस। सो अभी रिसेंट में सबसे ज्यादा जो क्राइम हो रहे हैं वो सिम स्वैपिंग के हो रहे हैं, ओके। इसमें क्या सबसे ज्यादा सिम स्वैपिंग में होता क्या है कि आपकी सिम को किसी तरीके से कहते तो है कि क्लोन किया जाता है, जब एक्चुअली में वो क्लोन नहीं, वो एक टेक्निकली वो क्या करते हैं, आपकी एक्चुअल सिम को बंद कर देते हैं और दूसरी सिम को यूज कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल सिम को कैसे बंद करते हैं, दे विल कॉल यू कि यहाँ पर हम आपको, ये आपकी सिम है 3G सिम चल रही है अभी, इसको हम 4G में अपग्रेड कर रहे हैं, ओके। दे विल कॉल यू लाइक दिस, और आप जैसे ही उस पे आप कहेंगे ओके हमारे मेरी सिम को अपग्रेड कर दीजिए, तो वो कहेंगे आपको एक एसएमएस आएगा, आपको जस्ट ये एसएमएस कंपनी के नंबर पे फॉरवर्ड करना है, और आप जैसे ही कंपनी के नंबर पे फॉरवर्ड करते हैं तो आपका एक्चुअल सिम कार्ड तो बंद हो जाता है, और जो फेक सिम कार्ड जो अटैकर के पास है, जो हैकर के पास है, वो सिम कार्ड एक्टिव हो जाता है। और वो सिम कार्ड एक्टिव होने के बाद क्या होता है, वो आपके सारे बैंक अकाउंट्स की ओटीपी और सब कुछ, क्योंकि सिम कार्ड तो उसके पास एक्टिवेटेड है, so he can easily use the SIM card, or he can access your bank accounts, and he can transfer the money wherever he want, okay। तो ये न्यूज़ रिसेंटली बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आ भी रही है कि आप प्लीज अवेयरनेस के लिए कि आप किसी को भी अपना ऐसे मैसेज फॉरवर्ड नहीं करें, किसी को भी अपने ओटीपीज नहीं दें, ओके। सो ये सबसे ज्यादा, अदरवाइज आपने एक एसएमएस आपने फॉरवर्ड किया, आपका बैंक अकाउंट पूरा खाली हो सकता है आपका फोन कंप्रोमाइज हो सकता है आपका ईमेल कंप्रोमाइज हो जाए, ओके। सो बेसिकली सिम स्वैपिंग में क्या होता है, एक अटैकर है, अटैकर के पास आपकी नॉर्मली डिटेल्स होती हैं, नॉर्मल डिटेल्स के बिहाफ पे वो एक सिम परचेज करता है, जिस सिम को जीरो सिम बोलते हैं, वो सिम एक्टिवेटेड नहीं होती है, ओके। उस सिम को एक्टिवेट करने के लिए पहले आपकी एक्चुअल सिम डीएक्टिवेट होना बहुत जरूरी होता है। उसको डीएक्टिवेट करने के लिए क्या करते हैं कि डीएक्टिवेट करने के लिए वो आपको कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि हम जिस कंपनी का आप सिम यूज कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि सपोज यू आर यूजिंग द सिम ऑफ कंपनी एयरटेल, वोडाफोन, जियो, व्हाटएवर, तो वो कहते हैं हम आपके उस कंपनी से बोल रहे हैं, आपकी सिम 4G में अपग्रेड कर रहे हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट, यू जस्ट हैव टू सेंड अ एसएमएस टू 121 और वेयर एवर। वो सिर्फ इतना बोलेंगे, आपको अपनी सिम आप कहेंगे ओके अपग्रेड कर दीजिए, आपके पास एक एसएमएस जेन्युइनली कंपनी से एक एसएमएस आएगा, जिसको आप जैसे ही फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड करते ही आपकी एक्चुअल सिम बंद हो जाएगी, और जो अटैकर के पास है वो सिम स्टार्ट हो जाएगी, ओके। सो सिम स्वैपिंग में आई हैव एन ऑडियो फॉर यू, so you can just it's for a fraud, actually fraud banking call, okay, कि बैंकिंग में किस तरीके से वो फ्रॉड कॉल्स करते हैं। सो आई थिंक it would be audible to all of you. बोलिए। Is it audible? मैं नेहा बात कर रही हूँ ICICI बैंक से। आप कार्ड यूज कर रहे हैं, बिल टाइम से आ रहा है मेल पर और एड्रेस पे। हाँ। ओके, और एक चीज और बताना चाहूंगी, आपके कार्ड पे कुछ रिवर्स फंड्स लिए गए थे बैंक साइड से 4200 के, रिवर्स फंड्स आपने यूज नहीं करे, एक्सपायर हो गए हैं, अब वो अमाउंट में रिडीम करके दिए जा रहे हैं आपको, ओके। ओके। एक रिवर्स फंड का जो अमाउंट होता है 2 रुपए के इक्वल होता है, टोटल अमाउंट रिडीम करके दिया जा रहा है 8400। 8400 8,400 रुपए कार्ड में ट्रांसफर होगा आपके बैंक से, आपका मैसेज आएगा कि इतना अमाउंट जो है कार्ड में ट्रांसफर हो गया है। इस अमाउंट को आप कैसे यूज करना चाहेंगे, लिमिट में ऐड करना चाहेंगे, बिल पेमेंट था आपका देने का उसमें माइनस करवाना चाहेंगे?
बिल पेमेंट में माइनस करवा दीजिए सर। ठीक है, आगे बिल पेमेंट में माइनस रहेगा, एग्जांपल मैं बता देती हूँ। इस तरीके से आपको कॉल्स आती है, एक जेन्युइन पर्सन बन के दे विल कॉल यू एंड धीरे धीरे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अभी हम इस ऑडियो को अभी कुछ टाइम के बाद वापस पूरा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा ऑडियो है, जिसमें पर्सन पूरी अपनी डिटेल्स दे देगा विद कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट एंड सीवीवी। ही विल गिव ऑल द डिटेल्स। ओके, पूरी डिटेल्स दे देगा। उसके बाद अभी जस्ट आई विल एक्सप्लेन कि कैसे होता है। सेकंड इज द ईमेल स्पूफिंग। अभी साइबर सेल में सबसे ज्यादा जो केस है वो ईमेल स्पूफिंग एंड ईमेल MITM के हैं, कि पर्सन्स के ईमेल्स कंप्रोमाइज हो गए हैं। कैसे? उनको एक ईमेल आता है उनके बायर से या फिर उनके वेंडर से, उनको एक ईमेल आता है कि इतना अमाउंट अब आप इस अकाउंट की जगह इस अकाउंट में, उनके वेंडर्स उन्हें ईमेल कर रहे हैं कि आप अमाउंट इस अकाउंट की जगह इस अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए। ओके, सो दे इजीली डिपॉजिट, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके वेंडर ने एक ईमेल किया है, तो वो नए अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देते हैं और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो बेसिकली ईमेल स्पूफिंग बहुत बहुत इजीली लोग कर रहे हैं, और इसको आइडेंटिफाई करना मतलब इतना ज्यादा टफ भी नहीं है। सो जस्ट मैं आपको अभी शो कर रहा हूँ कि कैसे शो करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, दिस वन। ओके, सो देर आर सो मेनी वेबसाइट्स ऑनलाइन जिन पे आप जाइए, जस्ट दे विल आस्क कि आपको किसके नाम से मेल भेजना है, किसको मेल भेजना है, किस ईमेल आईडी से मेल भेजना है। दे विल जस्ट आस्क फ्यू क्वेश्चंस एंड यू कैन सेंड द मेल्स इजीली। ओके, सो ये लोग तो इतना इजीली मेल्स भेज देते हैं, और मेल भेजने के बाद क्या होता है कि वो पर्सन को ये लगता है कि एक्चुअली में ये मेल आया है, और वो उस मेल पे ट्रस्ट कर लेते हैं। ओके, सो जस्ट इट्स अ वीडियो की कैसे एक फेक मेल भेजा जाता है। इट्स वेरी सिंपल। वो लोग इजीली इस तरीके से एक ईमेल भेजते हैं। सो विल टेल यू कि इसको कैसे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। जस्ट एक फॉर्म फिल किया एंड नाउ once we'll click on this send button and the mail will be in inbox. अभी देख लीजिए, अभी रिसेंट में कोई ईमेल नहीं है। ठीक है, अब जस्ट एक बार मेल सेंड किया, यहाँ से लिखा गया ईमेल हैज सेंड सक्सेसफुली। ओके, एंड नाउ अगेन जस्ट चेक कि मेल यहाँ पर आ गया है। ओके, सो एक चीज, अब जैसे ही अभी जैसे इस मेल को अभी ओपन करते हैं, ठीक है, कभी भी देख लेना इस तरीके का यदि कोई फेक मेल होगा, तो आप ये देखिए नाम जो लिखा हुआ है, नाम के आगे क्वेश्चन मार्क बन जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यदि ये कोई फेक मेलर है, 99% फेक मेलर्स को गूगल डिटेक्ट कर लेता है। आइदर वो उसको स्पैम में भेज देगा या फिर नेम को अननोन कर देगा। सबसे इजी तरीका ये है आइडेंटिफाई करने का। सेकंड वे है ईमेल हेडर्स को एनालिसिस करने का, जो काफी ज्यादा टेक्निकल होता है। ओके, सो नेक्स्ट दिस इज द ईमेल स्पूफिंग। और ईमेल स्पूफिंग के अंदर कोई भी किसी भी तरीके से, जैसे आपको लगेगा कि एक्चुअल ईमेल आया है, पर वो एक्चुअल ईमेल नहीं होगा, वो फेक ईमेल होगा, और आप उस पर यदि रिप्लाई भी करेंगे तो रिप्लाई भी हैकर के पास ही जाएगा, बिकॉज वो रिप्लाई टू में अपनी एक्चुअल ईमेल आईडी को सेट कर देता है। ओके, सो इट्स इजी to send a fake mail, fake kind of mails. Okay, so next point is डेटा प्राइवेसी का की कुछ टिप्स, जो अपने पॉइंट में था कि आप जो भी चीज यूज कर रहे हैं, कहीं भी आप अपना डेटा कोई भी किसी भी पब्लिक क्लाउड पे, किसी भी ऐसे क्लाउड पे नहीं रखें जहां पर आप उसको लॉक नहीं कर सकते हैं, सिक्योरिटी नहीं लगा सकते हैं। ओके, अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनकी प्राइवेसी सेटिंग्स को डे टू डे आपको चेक करना चाहिए कि आपने कहीं किसी ऐसी एप्लीकेशन को प्राइवेसी परमिशन तो नहीं दे रखी जो आपकी डिटेल्स, लोकेशंस को ट्रैक कर रही है। लाइक गूगल मैप्स, गूगल क्रोम, ये भी आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को बैकएंड में ट्रैक करता है। ओके, जितनी भी आप मैसेजिंग एप्स को यूज कर रहे हैं, लाइक व्हाट्सएप यूजेस एंड टू एंड एनक्रिप्शन। ओके, बट देयर आर सम अदर एप्लीकेशंस which are not using end to end encryptions. Okay, जो भी आप ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं उसकी परमिशंस को डे टू डे आप रिव्यू करें कि क्या आपने किसी भी एप्लीकेशन को गलत परमिशन तो नहीं दी हुई। एंड द लास्ट
पॉइंट कि आप कोई भी पब्लिक में ईमेल आईडी देते हैं, पब्लिक में शेयर करने के लिए आपके पास एक अलग ईमेल आईडी होनी चाहिए, और बैंक्स में और अदर आपकी कॉन्फिडेंशियल जगह पे आपकी एक अलग ईमेल आईडी होनी चाहिए। ओके, सो आपको यदि चेक करना है कि आपने जो भी प्रेजेंटली पासवर्ड रखा हुआ है वो आपका पासवर्ड कितना स्ट्रांग है, सो यू कैन जस्ट लॉग इन टू दिस वेबसाइट, हाउ सिक्योर माई पासवर्ड। ओके, एंड ये आपको बता देगा कि आपने जो अभी पासवर्ड रखा हुआ है वो पासवर्ड कितना इजीली ब्रेक किया जा सकता है। सपोज बहुत लोग पासवर्ड रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सपोज मैं ये पासवर्ड रखता हूँ तो ये बता देगा कि ये इंस्टेंटली ब्रेक किया जा सकता है। सपोज मैंने एक पासवर्ड रखा ABCD 1 2 3 4, ये क्या बोल रहा है कि ये भी इंस्टेंटली ब्रेक हो सकता है। बट सपोज आई एम राइटिंग अ पासवर्ड कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल d 1 2 3 and special characters 1 2 3, it will it's saying that it will take 6 years। और मैं थोड़ा और इसको कॉम्प्लेक्स करता हूं तो ये it will say 204 million years। okay, so you can check, you can test is your password is secure or not। okay, next point is फेक आइडेंटिटीज ऑन सोशल मीडिया। अभी सबसे ज्यादा यही केसेस भी आ रहे हैं कि किसी ने मेरा इंस्टाग्राम पे फेक अकाउंट बना दिया है, किसी ने मेरा फेसबुक पे फेक अकाउंट बना दिया है, किसी ने मेरी फेक ट्विटर प्रोफाइल बना लिया है। ओके, सो ऐसे केसेस के अंदर आपको क्या करना है, आप इंस्टेंटली उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, साइबर क्राइम में उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, और आपको तुरंत आइडेंटिफाई करके अपने फ्रेंड्स को भी बोलना है कि इस प्रोफाइल से थोड़ा वो इस प्रोफाइल पे रेस्पॉन्ड नहीं करें और उसको कंप्लेंट करें। ओके, सो किस तरीके से फेक प्रोफाइल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आपको पता चल ही जाएगा। जैसे इट्स लाइक यहाँ पर लेफ्ट में आप देख रहे हैं कि ये एक फेक प्रोफाइल है, एंड सॉरी लेफ्ट में यू कैन सी दैट इट्स अ रियल प्रोफाइल, एंड इन राइट यू कैन सी द सेम पर्सन की ऑनलाइन मीडिया से फोटोज लेके फेक प्रोफाइल्स बना लिए। ओके, तो फेक आइडेंटिटीज के बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे अभी रिसेंट में केसेस हैं। और किसी को भी सपोज मुझे किसी पर्सन को कंप्रोमाइज करना है, किसी का कोई अकाउंट एक्सेस करना है, एंड आई कैन नॉट इजीली टारगेट द पर्सन, तो हैकर्स क्या करते हैं कि कौन उसके सबसे ज्यादा क्लोज है उस पर्सन की एक फेक आइडेंटिटी बना के उसको टारगेट करते हैं। इट्स वेरी इजी टू कंप्रोमाइज द एक्चुअल टारगेट। ओके, so this is the actual main reason to create fake identities on social media। okay, basically you can see that there are how many persons are fake on internet, mostly because it's easy to means right, because they are not asking any government IDs। एक पर्सन है जो 7 to 8 years का है, वो अपनी फेसबुक प्रोफाइल बनाता है, फेसबुक प्रोफाइल क्या बोलता है कि आपको 18 years का होना जरूरी है, वो एक फेक प्रोफाइल बना के अपने आप को 18 years डिक्लेयर कर देता है उसमें। okay, so it's very easy to create fake identities on social media। okay, so next point is card fraud। अभी जो हम वीडियो, अभी जो ऑडियो हम सुन रहे थे, that is completely card fraud। एक लेडी आपको कॉल कर रही है, आपसे पूछ रही है इन्फॉर्मेशन, एंड आप रेगुलरली वो इन्फॉर्मेशन आप उसको बता रहे हो। जस्ट लेट्स नाउ कंटिन्यू दिस ऑडियो। अगर आपका बिल पेमेंट 8,400 से ज्यादा है, उसमें से 8,400 का माइनस होगा और जो बचेगा वो आपने पे करना, ठीक है? ओके, उसके लिए फिर कुछ क्रॉस वेरिफिकेशन होगी, और वेरिफिकेशन जैसी रन होती है ऑन कॉल रहती है, आपको बैंक से मैसेज आएगा, ठीक है? ठीक है। तो वेरिफिकेशन आप कार्ड पे चेक करिए, कार्ड पे जो पूरा नाम है खाजा अली, आपका जो मोबाइल नंबर है 7678038567, राइट? आपको एक मेल भी किया जाएगा, मेल आईडी चेक कर लीजिए। मेल आईडी जो है आपकी khaja143@yahoo.com, राइट? यस। उन लोगों के पास आपकी मोस्टली इंफॉर्मेशन होती है, उनको आपसे सिर्फ दो चीज रिक्वायर्ड होती है, फर्स्ट इज CVV, सेकंड इज OTP। मोस्टली केसेस में आपसे सिर्फ दो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, सो प्लीज नेवर शेयर योर CVV एंड OTP। एंड योर एड्रेस इज मुंबई, राइट? यस। और कार्ड पे चेक करिए, जो कार्ड है आपका वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है? मास्टर ही होगा ना, क्रेडिट कार्ड है तो? नहीं, वीजा और मास्टर कार्ड होता है। हमारी साइड से आपको दो लोगों दिए जाते हैं, एक वीजा कार्ड दिया जाता है, एक मास्टर कार्ड दिया जाता है। वीजा प्लैटिनम, राइट? उसने इतना भी बता दिया कि मेरे पास वीजा कार्ड है और कार्ड नंबर, एक्सपायरी डिटेल्स 1021
10/21 और वैलिड कब तक पता है कार्ड आपको? वैलिड फॉर्म डेट क्या लिखी? वैलिड है 10/17। ठीक है 10/17 टाइम। और कार्ड पे देखिए 16 डिजिट नंबर है, 44 के पेयर में स्टार्ट हो रहे 43755 से, राइट जी 16 डिजिट नंबर अपने वॉइस में वेरीफाई करिए सर। ये आपकी क्लाइंट आईडी होती है जिससे आपके बैंक में पहचान दी जाती है। अपने वॉइस में बोल दीजिए 43755 से आगे बोल दीजिए 2989921006। मैं रिपीट कर रही हूँ, एक बार चेक कर लीजिएगा। 43755129 राइट। यस लास्ट उसने 4 अपने डिजिट सारी इन्फॉर्मेशन 2106 दे राइट। दी है। यस और जो आपने 2106 जो 4 डिजिट बोले हैं पहले, वो एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। 51298999 899 2006। राइट। एंड डेट ऑफ बर्थ अभी वेरीफाई करा दीजिए, जो बैंक रजिस्टर डेट ऑफ बर्थ है आपकी। 1990। So he have given his all the information. Okay, सारी information देने के बाद when he will compromise, then he will come to either cyber expert or a company or cyber cell की हाँ मेरे साथ ऐसा हो गया है, अपने आप हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता है। मोस्टली केसेस में यही होगा कि वो यही बोलेगा कि मुझे नहीं पता कैसे मेरे अकाउंट से पैसे चले गए। ओके, सो कार्ड फ्रॉड अभी सबसे ज्यादा हो रहे हैं। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि आप किसी भी वेबसाइट पे परचेजिंग करते हैं, ठीक है, किसी भी वेबसाइट, और यदि वो वेबसाइट कंप्रोमाइज होती है तो आपका सारा डेटा भी ऑटोमेटिकली कंप्रोमाइज हो जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मर्चेंट्स, वन इज 2D, सेकंड इज 3D। सपोज देयर इज अ 2D मर्चेंट, 2D मर्चेंट है तो 2D मर्चेंट पे OTP की रिक्वायरमेंट कभी नहीं होती है, वो सिर्फ आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट एंड CVV वो प्रेस करेगा एंड विदाउट OTP आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। सपोज दैट मर्चेंट इज 3D सिक्योर्ड, तो आपके पास OTP आएगा, और OTP के लिए वो क्या करते हैं, आपका आइदर दे विल यूज सिम स्वैपिंग, either they will use compromise your phone using social engineering or malware kind of things, okay, or and they can either compromise your email address because OTPs emails पे भी आते हैं। okay, तो इस तरीके से वो पूरी चेन बनाते हैं, they completely plan everything and then they do the transactions। okay, okay, अब ये देखिए इस तरीके से पूरे वो मास्टर कार्ड्स भी। हाँ, आज के टाइम पे क्या होता है, यदि आपके पास इंफॉर्मेशन है किसी के कार्ड की, सो देयर आर सो मेनी टूल्स, यदि आप उन टूल्स के अंदर उस इंफॉर्मेशन को पुट करोगे कि ये कार्ड नंबर है, एक्सपायरी डेट है, CVV है, सो देयर आर 3 थिंग्स, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ये 3 तरीके के कार्ड्स होते हैं। तो उसमें उस इंफॉर्मेशन को कार्ड में राइट करके दे कैन, इफ दे नो योर पिन, दे कैन फिजिकली यूज योर कार्ड एज वेल। ओके, and the next point is my next point is cryptocurrency। okay, cryptocurrency basically अभी सबसे ज्यादा जो मार्केट में हैकर्स यूज कर रहे हैं, that is the cryptocurrency, they are charging from a person। आपने अभी रिसेंटली सुना होगा रैंसमवेयर जितने भी रैंसमवेयर के अंदर वो लोग डिमांड करते हैं, वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर डिमांड करते हैं, either 1 Bitcoin, 2 Bitcoins, 3 Bitcoins। So cryptocurrency is a new type of currency, it's a virtual currency, it's a decentralized currency जिसमें it's publicly open ledger, पर किसने किसको कितना अमाउंट ट्रांसफर किया है ये पता नहीं चलता है, इसीलिए हैकर्स इसको यूज करते हैं। और इसको ट्रेस करना इतना इजी नहीं है जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करना इजी है। सो दैट्स व्हाई दे यूज द क्रिप्टो करेंसी नाउअडेज। ओके, सो क्रिप्टो करेंसी पूरा किस तरीके से वर्क करता है कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट करता है। ओके, कोई भी एक ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट की, जिस पर्सन के पास से बिटकॉइंस ट्रांसफर होने हैं वो उस रिक्वेस्ट उसके पास जाएगी, उसके पास वॉलेट में उतने बिटकॉइंस है या नहीं वो वेरीफाई होगा, वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। ब्लॉकचेन पे मल्टीपल ब्लॉक्स मींस एवरीबॉडी विल वेरीफाई। जब ट्रांजैक्शन वेरीफाई होता है, एक ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक बनता है एंड द ब्लॉक integrated in the chain। So how this blockchain means this is the way how blockchain works। okay, so यदि आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम यदि हो जाता है, कोई भी आपके साथ इशू हो जाता है साइबर से रिलेटेड, सो आपको इंस्टेंटली पैनिक नहीं होना चाहिए। यू कैन means approach to either cyber experts, cyber security companies, or you have to firstly call to your bank।
बैंक को आप कभी भी कॉल करते हैं तो ये ध्यान रखें कि बैंक को कॉल करने के लिए जो डेबिट कार्ड के ऊपर पीछे लिखा हुआ नंबर है, आप उसी पे कॉल करें। मोस्टली लोग गूगल पे सर्च करते हैं डेबिट कार्ड के लिए नंबर कस्टमर केयर का, और वो हैकर्स के पास कॉल कनेक्ट हो जाता है ड्यू टू देयर social engineering and the ranking. Okay, so yes, you can for the contact, if you want to contact someone, you have to just check everything. Like suppose कोई आपको malicious link भेजता है इंस्टाग्राम का, तो आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि वो लिंक कैसा है। सपोज यहाँ पर इंस्टाग्राम कहीं भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, ठीक है, यू कैन चेक दैट कहीं भी यहाँ पे इंस्टाग्राम लिखा हुआ नहीं है। आप देखें पावर्ड बाय 000 वेब होस्ट, तो आप कहीं भी क्रेडेंशियल्स डाल रहे हैं उससे पहले आप पहले ये चेक कीजिए कि उसका यूआरएल क्या है, यूआरएल उसका सही है या नहीं, अलग तो यूआरएल नहीं है। लाइक दिस सेम, this is the Netflix, okay, you can see the URL, okay। so आप कभी भी कोई भी क्रेडेंशियल्स आप यदि कहीं पे भी पुट कर रहे हैं तो उससे पहले आप ये जरूर देखें कि किस तरीके से क्रेडेंशियल आप दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी आप इंफॉर्मेशन देने से पहले अपना पहले ये चेक कर लें कि आप इंफॉर्मेशन कहाँ पे पुट कर रहे हैं। गलत वेबसाइट पे आपकी इंफॉर्मेशन गई तो इंफॉर्मेशन जाते ही मींस योर डिटेल्स माइट बी compromised। So thank you for the discussion. Now I think now Zuhi ma'am can take over this session. Thank you. Thank you so much, Chirag sir. Indeed, it was a very informative and in बहुत कम टाइम में आपने हमें बहुत सारी चीजें बता दी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सिर्फ बिना अननोइंगली अपना पासवर्ड रख लेते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ रख लेते हैं, 1 2 3 4 रख लेते हैं, ABCD रख लेते हैं, और बिना सोचे समझे अपना पासवर्ड रखने से नाउ आवर व्यूअर्स हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कि वो किस तरीके से अपने पासवर्ड को सेव कर सकते हैं। साथ ही आफ्टर नोइंग दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स की, जिस तरीके से हमें कॉल आते हैं, जिस तरीके के मैसेजेस हमें आते हैं, इन वी गेट वेरी एक्साइटेड विद द कॉल्स कि आप इस तरीके का कोई प्राइज मनी आपने जीता है, या इस तरीके से आपका कोई अमाउंट डिडक्ट हो सकता है, इस तरीके से आप कोई प्राइज विन कर सकते हैं। बहुत ही टेम्पटिंग साउंड भी करता है वो, और हम उन सारी बातों के साथ बिना सोचे समझे बहुत सारी चीजों में लैंड कर जाते हैं। बीइंग अ बैंकर, बैंक लॉयर, आई अंडरस्टैंड। फिर लोग आते हैं हमारे पास, आपके पास, कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। आई एम श्योर कि आफ्टर दिस इंफॉर्मेशन बहुत सारे ऐसे लोग होने वाले हैं जो आपके पास भी कम आएंगे और हमारे पास भी कम आएंगे। पीपल विल बी वेल अवेयर नाउ कि कौन सी ऐसी चीजें जो उनको नहीं करनी चाहिए। पीपल आर वेल अवेयर अबाउट द क्रिप्टो करेंसी, पीपल आर अवेयर अबाउट कि किस तरीके से उनके मेल से वो पता कर सकते हैं कि इट इज ऑथेंटिकेटेड पर्सन और नॉट। बहुत सारे फेक इंस्टाग्राम आईडीज बन जाती हैं, बहुत इंस्टाग्राम फेसबुक बन जाते हैं इन दिस डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड। हम बहुत सारी चीजों पे ट्रैक नहीं रख पाते हैं, बट बीइंग अवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच चिराग सर, दिस वाज सच अ informative 20 minutes with you. I think we have a lot in our bag today when it comes to panelists. Thank you so much, Chirag sir. We thank you again, and we'll definitely come back to you. A lot of questions are waiting for you. I am sure कि हम बहुत सारी चीजें आपसे आज सीखेंगे। Talking about hacking, talking about the people who are doing the hacking, it's very important that we should be aware कि इनसे रिलेटेड हमारे पास कौन से ऐसे लॉज हैं, किस तरीके से हमें हमारी गवर्नमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लॉज हमें इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करते हैं। सो जितना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें पता है कि व्हाट इज साइबर लॉ, साइबर क्राइम एंड हैकिंग, एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये भी पता हो कि व्हाट इज साइबर लॉ, कैसे लॉ हमें इन चीजों से प्रोटेक्ट कर रहा है, कैसे एक इतनी बड़ी बॉडी है जो सिर्फ हमें सिर्फ साइबर रिलेटेड क्राइम से बचा रही है। And who best to talk about it? We have a wonderful panelist with us, Advocate Nishchit sir. I am very eager to know a lot about the cyber laws now. Handing over the screen to Nishchit sir. So we are waiting to listen to you. Over to you, sir. Thank you.
Can you hear me? Yes, yes, I can hear you. Okay, sir. Yeah, my screen visible? Yes, sir. Your screen is visible. It's Okay. visible. Yeah, it's visible. Sir, I think you should do the preview screen. It's visible. My screen is visible. My presentation. Yeah, sir, your presentation is not on the screen. Yeah, Yahoo Mail. Yes, now we can see your presentation, sir. Please full screen your Okay. presentation and it will be. Okay. Now it's visible. Yes, sir, it is visible. If you can you please full screen the presentation? Now. And if not, we are So, still able to see it, so you can continue. okay, okay. So as per चिराग सर, जैसे Yes. चिराग सर ने बताया जिनके साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो अब वर्ल्ड वाइड वेब जो था वो वर्ल्ड वाइड वरी में कन्वर्ट हो गया है। जो टिम बर्नर-ली ने बनाया था वेब पेजेस को देखने के लिए, तो हमें अवेयर होने की बहुत आवश्यकता है। क्या प्राइवेसी सेटिंग्स हैं? तो साइबर क्राइम एग्जैक्टली है क्या? तो साइबर क्राइम को अगर समझे तो कॉम्बिनेशन ऑफ क्राइम एंड कंप्यूटर रिसोर्स। एज पर आईटी कंप्यूटर रिसोर्स का मतलब होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर। तो कोई भी क्राइम जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट का उपयोग होते हुए किया गया है उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। और जनरली इसमें इंक्लूड होते हैं साइबर टेररिज्म का क्राइम जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट है, हैकिंग है, इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज है, ऑनलाइन चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन है, इंटरनेट यूसेज पॉलिसी अब्यूजेस है, इलीगल परचेज ऑफ गुड्स है, सेक्सुअल असॉल्ट है, इंटरनेट फ्रॉड्स हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी है, वायरसेस है, इम्पर्सोनेशन एंड मैनी मोर। तो साइबर क्राइम को ब्रॉडली समझे तो क्राइम विद कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनेट और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। और रीजन ऑफ साइबर क्राइम समझे तो चिराग सर ने बताया था, क्योंकि वल्नरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में हम सब वल्नरेबल हैं। हम जो भी सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाके हम सब कुछ कंसेंट दे देते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, उन कॉन्टैक्ट नंबर्स का कहाँ मिसयूज होता है, हमारी फोटोग्राफ्स का कहाँ यूज होता है, हमारी लोकेशन का कहाँ मिसयूज होता है। क्रिमिनल्स को हमारे फोटोग्राफ, हमारी लोकेशन, हमारी लाइक्स, डिसलाइक्स और हमारी जितनी भी वल्नरेबिलिटी से मतलब है, जिसके बेस पे वो क्राइम करने के लिए बड़ा उनके लिए सहायता प्रदान होती है, जब हम सब चीजें कंटेंट अपनी इजीली अवेलेबल कराते हैं। रिगार्डिंग लीगल रेमेडीज जो हैं क्राइम के लिए, जो भी क्राइम अभी चिराग जी ने बताया, हाईलाइट किया, स्पूफिंग का है, एसएमएस या फ्रॉड्स हैं, फिशिंग है, विशिंग है, या जितने भी सिम फ्रॉड्स के केसेस हैं, उसके लिए अगर आपके साथ कोई भी क्राइम होता है तो विद इन 72 आवर्स आरबीआई की गाइडलाइंस है 6 जुलाई 2017 की, जिसके बेस पे आपको 72 घंटे के अंदर बैंक को इन्फॉर्म करना है कि अगर आपके साथ कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। तो ध्यान रखें, 72 घंटे के अंदर बैंक को इन्फॉर्म करें, डिटेल में इन्फॉर्म करें, मेल से करें, और साथ में एक डिस्प्यूट क्लेम फ्रॉड होता है उसको भरें, ताकि आपको सारा का पैसा जो है वो बैंक आपको रियम्बर्स वापस करे। लेकिन अगर आपने ओटीपी शेयर किया है, मीन्स आपकी अगर लायबिलिटी है, तो बैंक पैसा नहीं देगा। थर्ड पार्टी है या क्रिमिनल्स ने हैक किया है या किसी ढंग के स्विम कर दी है, किसी ढंग से ऑनलाइन फ्रॉड है, बैंक को आप इंटीमेट करें विद इन 72 आवर्स। बट सबसे पहले क्या करें, जैसे ही आपके साथ कोई क्राइम होता है, सबसे पहले पुलिस को आप इन्फॉर्म करें, ताकि पुलिस के पास जो टाइम गोल्डन पीरियड है, ताकि पुलिस उस ट्रांजेक्शन को रोक सकता है, वॉलेट से पैसा बचा सकता है। आज हमारी पुलिस बहुत सक्षम है, हमारे नोडल अफसर बहुत सक्षम है, जितनी भी कंपनी से हमारी पुलिस अफसर्स की लाइसेंसिंग है, सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कहीं भी किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो ध्यान रखें, सजग रहें। लोग सिर्फ व्हाट्सएप देखते हैं, लोग एसएमएस नहीं देखते हैं, तो प्लीज विजिलेंट रहें जो भी ट्रांजेक्शन होता है। जब भी कोई क्राइम होता है तो आपके पास अगेन रेमेडीज हैं, आप सिविल केस कर सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे अभी जो भी लॉ है। आपके पास आईटी सेक्रेटरी के पास जाने की सक्षमता है, 5 करोड़ तक का कंपनसेशन अगर आपको चाहिए सिम स्वैप केसेस में, या जहाँ बैंक की लायबिलिटी है, या टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की लायबिलिटी, या एम्प्लॉय की लायबिलिटी, जहाँ आपका डेटा ब्रीच हुआ है और आपको लॉस हुआ है, तो आईटी सेक्रेटरी के पास हम जाके केस फाइल कर सकते हैं, या कंज्यूमर केसेस फाइल कर सकते हैं सिविल केसेस में। क्रिमिनल केसेस में एज यूजुअल अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है हम कंप्लेंट फाइल करेंगे कोर्ट के थ्रू, नहीं तो हम सीधा एफआईआर करेंगे पुलिस के पास जाके कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। आईटीएफ के मैक्सिमम केसेस कॉग्निजेबल हैं, तो हम एफआईआर में ही जाएंगे। आईटीएफ हिंदुस्तान 12वां कंट्री था पूरे वर्ल्ड में जिसने अपने देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को इनेक्ट किया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस को प्रमोट करना, साथ में लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। अब जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उनको कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर से कैसे उसको ऑथेंटिकेट करेंगे।
अगर हम जनरल वे में डिवाइड करें साइबर क्राइम आईटी एक्ट में, तो साइबर कॉन्ट्रावेंशन भी हैं आईटी एक्ट में, साइबर ऑफेंसेस भी हैं। साइबर कॉन्ट्रावेंशन सेक्शन 43 बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी नेटिजन एंड एवरी सिटीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझना पड़ेगा। जैसे ये समझ लीजिए, जैसे मैं किसी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क का ओनर हूँ और चिराग भी उसके इंचार्ज हैं, और अगर किसी व्यक्ति ने मेरे सिस्टम को जाके सेक्शन 43 कैपिटल स्मॉल ए का अगर हम डिस्कस करें, इस लॉ को समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पब्लिक एट लार्ज सबको समझना जरूरी है कि 43 ए का कानून क्या है। कोई भी व्यक्ति किसी और व्यक्ति के, जैसे मेरा कंप्यूटर है, मैं कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क का ओनर हूँ और चिराग इंचार्ज है, हम दोनों की सहमति के बिना मेरे किसी सिस्टम को, नेटवर्क को किसी ने एक्सेस कर लिया, या तो फिजिकली मेरे ऑफिस में आके या रिमोटली, यानी किसी ने हैक कर लिया, तो हैकिंग का सेक्शन ही आईटी एक्ट में 43 स्मॉल ए है। ध्यान रखिएगा, तो बिना किसी की परमिशन के किसी के सिस्टम को एक्सेस करना, रिमोटली या फिजिकली, जब तक आपके पास परमिशन नहीं हो, ऑथराइज परमिशन नहीं हो, प्लीज किसी का एक्सेस नहीं करें, क्योंकि अपने आप में एक ऑफेंस है, क्राइम है। सेकंड पार्ट इज 43 बी, जिसको हम डाटा थेफ्ट भी बोलते हैं। किसी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क के ओनर या इंचार्ज मेरी परमिशन या चिराग की परमिशन के बिना किसी ने हमारे सिस्टम में जाके कोई सिस्टम में पेन ड्राइव या ब्लूटूथ या किसी का सिस्टम को एक्सेस किया और उसमें से डाटा ट्रांसफर कर लिया, किसी भी प्रोसेस से, किसी भी तरीके से ईमेल कर दिया या डाटा निकाल लिया, किसी भी ढंग से, तो किसी भी ढंग से किसी के सिस्टम में जाके अनऑथराइज एक्सेस करना, 43 ए 43 बी में उसका डाटा निकाल लेना। डाटा की चोरी, ध्यान रखें, कोई आपके सिस्टम पर एक्सेस कर रहा है तो 43 ए लगा सकते हैं, आपका डाटा निकाल लिया, किसी ढंग से डाटा ट्रांसफर किया, 43 बी। सी कहता है किसी के सिस्टम पे जाके आपने उसको, उसके सिस्टम में वायरस इंक्लूड कर दिए, या आपने पेन ड्राइव लगाया तो डाटा चुरा रहा है आपका डाटा, उसने पेन ड्राइव लगाया, पेन ड्राइव से डाटा में आपके सिस्टम में वायरस आ गए, या किसी ने आपको लिंक भेजा। और जो अभी चिराग बता रहे थे, फिशिंग विशिंग में क्या होता है, लिंक आता है, जैसे लिंक को हम क्लिक करते हैं, हमारे सिस्टम में मेलवेयर, ट्रोजन या वायरस इन्फेक्ट कर देते हैं, तो दैट इज 43 सी। रैंसमवेयर में भी क्या है, लिंक आता है, लिंक को जैसे ही क्लिक करते हैं हमारा सिस्टम पूरा एन्क्रिप्ट हो जाता है, तो 43 सी उसमें कवर करता है, हमारे आई टेक में प्रावधान है। 43 डी कहता है डैमेज करना, यानी कोई कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क को डैमेज कर रहा है। ऑब्वियसली अगर मेरे सिस्टम में वायरस आ गया, वायरस आते मेरे सिस्टम पूरा डैमेज हो जाएगा, तो सेक्शन 43 डी पूरा कवर करता है। 43 डी में डैमेज होता है कोई सिस्टम नेटवर्क, अब ये रिमोटली भी हो सकता है और फिजिकली भी। डिस्ट्रप्शन 43 ई, कोई किसी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क को डिस्टर्ब कर देता है अगर, तो हम उसके बेस पे सेक्शन 43 ई में करते हैं। कोई टेम्परेली किसी के सिस्टम को क्रैश कर देता है तो उसको 43 ई में कवर करते हैं। और सेक्शन 43 एफ जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, जिसको हम डिनायल ऑफ सर्विस डॉस अटैक कहते हैं। डीडॉस भी होता है, जिसमें सबके सिस्टम्स को ज़ॉम्बीज की तरह यूज करते हैं और फिर अटैक करते हैं। मैक्सिमम जितनी भी कंपनीज हैं वर्ल्ड की, वो आज की तारीख में सबसे ज्यादा अपनी सिक्योरिटी, सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी इसी पे बेच सकती हैं कि उन पे कोई डॉस अटैक नहीं हो रहा हो। उसके बाद आता है 43 जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी और व्यक्ति को असिस्टेंस करना कि आइए किसी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क को एक्सेस करिए। आपने सुना होगा, जैसे बहुत से एग्जाम, हमारे यहाँ पुलिस की भर्ती हुई थी, पुलिस की भर्ती में ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर था, और जो 2 प्रतिभागी आए उन्होंने पहले ही ऑनलाइन सेंटर वाले से बात करी और उसने उनके सिस्टम में एक रिमोट एक्सेस ट्रोजन डाल दिया, जिसके बेस पे जब एग्जाम स्टार्ट हुआ तो रिमोटली कोई और व्यक्ति पेपर उनका सॉल्व कर रहा था। तो इस ढंग के बहुत से केसेस आते हैं जिसमें कोई और व्यक्ति किसी और व्यक्ति को रिमोटली एक्सेस करने के लिए सहायता प्रदान करता है, तो उसकी लायबिलिटी आती है। तो ध्यान रहे कोई आपके सिस्टम का कोई इश्यू नहीं कर रहा हो या कोई और फैसिलिटेट नहीं कर रहा हो। उसके बाद आता है 43H, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कोई व्यक्ति आपके वाईफाई को हैक करके बैठा है, आपके सिस्टम को हैक करके बैठा है, तो हैक तो किया तो 43A में कवर है, लेकिन आपके इंटरनेट टाइम को भी यूज कर रहा है, हॉटस्पॉट यूज कर रहा है, अनटिल अनलेस आपने कोई सिक्योरिटी फीचर यूज किया, मैं आपके घर आया, आपके पास मिला, वापस आया, दोबारा से घर के पास खड़ा हूँ, वाईफाई को सिस्टम ऑटो कनेक्टेड होता है। जैसे चिराग ने बताया सिक्योरिटी, तो ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें, पासवर्ड रैंडम चेंज करते रहें। तो पता लगा मैं आपके घर आया, मुझे आपने पासवर्ड दिया, मैंने हॉटस्पॉट ऑन किया, उसके बाद मैं दोबारा 3 दिन बाद आया, दोबारा से ऑटो कनेक्ट हो गया, तो 43A आ रहा है, क्योंकि आपने अथॉरिटी नहीं दी और मैं आपके सिस्टम का इंटरनेट टाइम भी यूज कर रहा हूँ, तो 43H में कवर होता है। इसके बाद कोई व्यक्ति किसी के कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क में जाके उसके डाटा को, इंफॉर्मेशन को डिलीट या छेड़छाड़ कर देता है, उसमें ऑल्टरेशन करता है, जिससे उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, उसके केसेस जो है वो 43I में कवर होते हैं, ध्यान रखें। और सबसे लास्ट 43J है, जो कोई व्यक्ति किसी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क में जाके बिना ओनर इंचार्ज की परमिशन के उसका सोर्स कोड, जितनी भी आईटी कंपनीज है उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि 43J उनसे रिलेटेड है। कोई कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क में जाके अगर उनके सोर्स कोड को ही चुरा लेता है, तो सेक्शन 43A और J दोनों में वो कवर होता है। तो अगर ये 43 ABCDEF GHI जो हमने सेक्शंस पढ़े, इसमें मेरे 5 करोड़ तक लॉस होता है, तो हमारे यहाँ राजस्थान में आईटी सेक्रेटरी या जो भी स्टेट में है, हर स्टेट में आईटी सेक्रेटरी IAS होते हैं, जिनको आईटी एजुकेशन की पावर दी गई है,
5 करोड़ तक का केस का कंपनसेशन की पावर उनके पास है। और अगर यही चीज, यही इसमें ही मैंसलिया है, एक तो कंपनसेशन का पार्ट है सिविल केसेस, तो हम सिविल केसेस कंपनसेशन के लिए कर सकते हैं, और यही पार्ट अगर किसी ने जो सेक्शन 43 और A to J हमने सेक्शन पढ़े, किसी ने डिसऑनेस्टली फ्रॉडुलेंटली किया है, तो ये हो गया साइबर ऑफेंस सेक्शन 66। यानी हम साइमल्टेनियसली हम FIR भी करा सकते हैं पनिशमेंट के लिए, और हम सिविल केसेस में कंपनसेशन के लिए भी इसमें IT एक्ट में केस फाइल कर सकते हैं। 43A में वही कंपनीज को, जैसे सिम स्वैप का अभी चिराग जी ने डिस्कस किया, हमने भी बहुत से केस फाइल किए। ध्यान रखें, अगर किसी के अकाउंट से पैसे निकल जाए और सिम स्वैप हुआ है, सिम कार्ड किसी टेलीकॉम कंपनी ने अगर सिम दे दिया, किसी को इशू कर दिया बिना आपकी परमिशन के, और आपके अकाउंट से पैसे निकल गए, तो आप IT सेक्रेटरी के पास जाके केस फाइल कर सकते हैं कंपनसेशन के लिए। रिगार्डिंग साइबर ऑफेंसेस के सेक्शन डिस्कस करें, किसी कंप्यूटर सिस्टम में जाके उसको टेम्परिंग करना, ये अपने आप में ऑफेंस से 3 साल की सजा है। कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस सेक्शन 66 जो हमने डिस्कस किया, सेक्शन 43 ABCD जिससे रिलेटेड है, 3 साल की सजा है। कोई व्यक्ति किसी और के सिस्टम में जाके उसका डाटा चुरा के लाके आपको देता है, यानी मुझे किसी ने डाटा चुरा के मुझे दिया और मैंने उसको रिसीव किया, यानी किसी और का कंटेंट, किसी और का डाटाबेस सॉफ्टवेयर या कोई सोर्स कोड मैंने ये जानते हुए कि ये चुराया हुआ है, तो मेरी लायबिलिटी 66B में बनती है 3 साल की। तो ध्यान रखें, इंश्योर करें आपके पास कोई कम्युनिकेशन डिवाइस, डाटाबेस सॉफ्टवेयर कोई लेके आता है तो इंश्योर करें, कोई सोर्स कोड भी, आपको कोई वेब डेवलपर है, आप सोर्स कोड यूज कर रहे हैं, तो अगर वो स्टोलन है तो लायबिलिटी 66B में आती है। फिर आता है 66C आइडेंटिटी थेफ्ट। सबसे ज्यादा केसेस यही हो रहे हैं, आपके प्रोफाइल पिक्चर का यूज करना, आपकी फोटोग्राफ का यूज करना, मोबाइल नंबर का यूज करना, आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर का यूज करना। तो सबसे ज्यादा परमेंद्र जी बताएंगे कि सबसे ज्यादा केसेस हम 66C में लगाते हैं। पता लगा आपकी फोटोग्राफ को लेके और मैंने अपना DP बना दिया और अपना फेसबुक ID खोल दिया, तो 66C उसको कवर करता है। तो प्लीज ध्यान करें, इंश्योर करें किसी और के फोटोग्राफ का यूज नहीं करें, उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर का यूज नहीं करें, क्योंकि अपने आप में ये 3 साल की सजा है, 66C है। और साथ में अगर किसी और के प्रोफाइल की पिक्चर को लेके मॉर्फ करके अपलोड किया तो IPC सेक्शन 468 469 भी आता है। किसी की रेपुटेशन डाउन करनी है, तो आज के केसेस में लड़कियों के साथ बहुत क्राइम हो रहा है, बच्चियों के फोटोग्राफ लेके, गर्ल्स लेडीज के वुमेन के फोटोग्राफ को लेकर मॉर्फिंग करके अपलोड करके लोग अपना फेसबुक ID बना के फ्रेंडशिप करते हैं, जिसके बेस में बहुत से केसेस होते हैं, एनोनिमस बनते हैं और जैसे जैसे IP एड्रेस को बचा के कर लेते हैं। लेकिन हालांकि लॉ एनफोर्समेंट बहुत स्मार्ट है आज की तारीख में, सोशल मीडिया इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। चिराग जैसे परमिंदर जी पकड़ लेते हैं बहुत आसानी से, लेकिन फिर भी जो क्राइम है उसका कानून जो है वो 3 साल की सजा है। फिर आता है चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स। कोई व्यक्ति आपको कॉल कर, जैसे चिराग जी ने बताया कि 3G से 4G कर रहा हूँ, तो जो व्यक्ति आपको फोन कर रहा है, इंपर्सोनेट कर रहा है, चीटिंग करके आपको प्रतिरूपण द्वारा छल कर रहा है, इंपर्सोनेट कर रहा है कि साहब मैं एयरटेल से बोल रहा हूँ या किसी कंपनी से बोल रहा हूँ या आपकी पॉलिसी को रिन्यू कर रहा हूँ, तो इस ढंग के जो क्राइम्स की केसेस हैं वो हमारे 66D में कवर्ड है। अगेन 3 साल की सजा है, कॉग्निजेबल है। वॉल्यूशन ऑफ बॉडी प्राइवेसी, ये ध्यान रखें, बहुत सी जगह बहुत से केसेस दर्ज हुए हैं जहाँ पर पता लगा आप चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज कर रहे हैं, बच्चे हमारी फैमिली मेंबर्स कहीं गए हैं, मॉल में गए या कहीं पे होटल में हम कहीं चेकिंग किया, पता लगा वहाँ हिडन कैमरा लगा हुआ है, स्पाई कैमरा लग रहा है। किसी की व्यक्ति के फोन से रिकॉर्डिंग करना, कहीं भी अगर किसी के प्राइवेट पार्ट्स रिकॉर्ड कर लिए गए हैं तो अपने आप में 66 की लाइबिलिटी है। इवन कोई व्यक्ति किसी के फोन में मेलवेयर डाल के रिकॉर्डिंग भी करता है, उसमें प्राइवेट कंटेंट 66 भी आता है और साथ में हैकिंग का सेक्शन भी आता है, सेक्शन 43, 66, 43A। तो ध्यान रखें, साइबर टेररिज्म किसी ध्यान रखें, कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स या उसमें किसी के डॉस अटैक करके या हैक करके कोई भी ऐसा कंटेंट अपलोड करना जिससे देश की सुरक्षा पे, एकता, संपूर्णता पर खतरा या दो समुदायों के बीच में टेरर स्ट्राइक होता है जिसके बेस पर, ध्यान रखें इसकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो कोई भी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क अपना ही यूज करें, किसी और का नहीं करें, विदाउट अथॉरिटी विदाउट परमिशन नहीं यूज करें किसी का। अगर हॉटस्पॉट या वाईफाई भी यूज करें तो आपके पास ऑथेंटिकेट परमिशन होनी चाहिए, ध्यान रखें, इसके बहुत रिपरकशंस होते हैं। इसके बाद जो आज के टाइम में कोविड में आप ध्यान रहे हैं, बहुत से केसेस आ रहे हैं जिसमें बहुत सी र्यूमर्स फैलाना, तो वो भी ध्यान रखें, किसी और के बेस पे किसी और के फोटोग्राफ लेकर र्यूमर फैला रहे हैं और जिसमें पैंडेमिक एक्ट में भी कवर हो रहे हैं, 188A में 88 का भी कवर हो रहे हैं, तो आईटी एक्ट के बहुत से केसेस इसमें रद्द हो रहे हैं। फिर आता है ऑब्सीन कंटेंट। देखिए ग्रुप्स में व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लोग बाग ऑब्सीन कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। देखिए अपने आप में क्राइम है, ऑब्सीन कंटेंट 3 साल अवेलेबल है हालांकि, लेकिन 3 साल की सजा, इसमें ध्यान रखें। कोई भी ऑब्सीन कंटेंट अपलोड करना, ट्रांसमिट करना अपराध है। और 67A में कोई फोन कंटेंट अगर किसी ने किसी को भेज दिया, ट्रांसमिट कर दिया, अपलोड कर दिया, पब्लिकली वॉच कर दिया, देखा, तो 67A में 3 साल तक की सजा है, 5 साल की सजा नॉन अवेलेबल है, ध्यान रखें। और सबसे बड़ा चैलेंज है वो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। मैक्सिमम केसेस चाइल्ड पोर्नोग्राफी के इस टाइम पीरियड में दर्ज हुए हैं
एक MHA की टिप लाइन स्टार्ट है। जो भी व्यक्ति अगर चाइल्ड पोर्न कंटेंट देख रहा है, MHA प्लस जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, वो एजेंसीज उनके IP एड्रेस को कैच करके MHA के थ्रू स्टेट पुलिस को वो कंफर्म कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये व्यक्ति है जिसने चाइल्ड पोर्न कंटेंट देखा है, अपलोड किया है, डाउनलोड किया है, उसको वो अरेस्ट कर रहे हैं। बहुत से केसेस महाराष्ट्र है, देहरादून है, दिल्ली है, जयपुर में भी एक केस हमारे अभी प्रधान जी बताएंगे। ऐसे और बहुत से केसेस हैं। ध्यान इंश्योर करें आपका सिस्टम को यूज नहीं कर रहा हो, आपके IP एड्रेस का ही आएगा, आपके मोबाइल का हॉटस्पॉट को यूज कर रहा है, आपके वाईफाई को यूज कर रहा है और वो कौन कंटेंट देख रहा है, लाइबिलिटी आपकी, क्योंकि आपका IP एड्रेस जाएगा। बहुत बड़ा चैलेंजेस है, ध्यान रखें चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकना। इसके बाद आप कोई भी कंटेंट है, आप देखिए ध्यान रखें, पुलिस हमारी गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ध्यान रखें आपका कोई कंटेंट अगर कहीं कंटेंट कोई गंदा ऑब्ससीन कंटेंट, डेरोगेटरी, डिफेमेटरी कंटेंट किसी ने अपलोड किया हुआ है किसी भी सोशल मीडिया साइट्स में, तो आपके पास पावर है, आप सिविल कोर्ट में जाके इंटेंशन सूट फाइल कर सकते हैं, कोर्ट से ऑर्डर ले सकते हैं या पुलिस के पास जाके जा सकते हैं। और जो हमारी एजेंसीज हैं वो एजेंसी 79 में IT एक्ट में और नोटिस इशू करेंगी ताकि टाइमली वो कंटेंट ब्लॉक कर दिया जाए सोशल मीडिया से, ताकि आपको आपका डिफेमेशन नहीं हो। तो ध्यान रहे, इंश्योर करें आपका कोई कंटेंट कहीं सोशल मीडिया में अपलोड नहीं हो। इसके बाद ध्यान रखें कोई भी प्रोटेक्टिव सिस्टम अगर भारत सरकार ने कोई प्रोटेक्टिव सिस्टम डिक्लेयर किया हुआ है, उसको अगर किसी ने अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लिया, देखिए सिंपल हैकिंग की सजा 3 साल है, लेकिन अगर किसी ने प्रोटेक्टिव सिस्टम को हैक किया या उसको एक्सेस करने की अटेम्प्ट भी किया तो 10 साल की सजा है। तो ध्यान रखें, इंश्योर करें आपके पास अथॉरिटी हो, क्योंकि एक होता है ऑथराइज एक्सेस, एक होता है अनऑथराइज एक्सेस और एक होता है एक्सीडिंग ऑथराइज एक्सेस। तो एक्सीडिंग ऑथराइज एक्सेस का मतलब आपको अगर कोई अथॉरिटी दी गई है तो आप उसके आगे नहीं जाएं, आपको जो परमिशन दी गई है आप उस परमिशन के थ्रू ही एक्सेस करें। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके बाद 72A बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 72 आपके पास कोई मेरे पास आप आए, मैंने आपको अथॉरिटी दी है मेरे सिस्टम डाटा को हैंडल करने की, एक्सेस करने की, लेकिन आपने मेरे सिस्टम को एक्सेस किया, आपको परमिशन है, लेकिन आपने वो डाटा किसी और को दे दिया, तो लायबिलिटी सेक्शन 72 बनती है। पनिशमेंट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन इन ब्रीच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट मींस कोई भी आपका कंटेंट है जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर या आपकी क्या नाम है बैंकिंग है या आपके एम्प्लॉयर के पास है कोई डाटा, उसका उसने मिस अप्रोप्रिएट किया तो क्रिमिनल लायबिलिटी है। तो हम IT सेक्रेटरी के पास भी जा सकते हैं सिविल केसेस में और क्रिमिनल लायबिलिटी में उस कंपनी को हम 72A में साथ में 85 ITI ऑफ एम्प्लॉय कंपनी के साथ उसको हम बुक करा सकते हैं। तो ये जस्ट मैंने आपको एक लिंक दिया है IT के लॉ के बारे में कि कौन कौन से सेक्शंस इसमें कवर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एज ए सजग सिटीजन नेटिजन आपको पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या क्राइम हो रहा है। आप कहीं विक्टिम नहीं हो, आप कहीं कल्प्रिट नहीं हो, क्योंकि आज जैसे बच्चों का स्कूल में आपने देखा दिल्ली में क्या हुआ, छोटे बच्चे विक्टिम भी हैं, छोटे बच्चे एक्यूज भी हैं। तो इंश्योर करें हमारे बच्चे क्या कंटेंट देख रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। फिशिंग केसेज हैं, इंश्योर करें लिंक को आप चेक करें, जैसे चिराग जी ने बताया। पुलिस से आप बिल्कुल कोऑर्डिनेट करें। cybercrime.gov.in वेबसाइट गवर्नमेंट MHA ने बना दी है, जिसके बेस पे अगर आप पुलिस को अप्रोच नहीं कर पा रहे टाइमली, तो आप उस वेबसाइट पे जाके अपलोड करके अपने डिटेल्स क्रेडेंशियल्स अपलोड कर दीजिए। सक्षम अधिकारिता वाले पुलिस स्टेशन पर वो रिपोर्ट पहुंच जाती है, तो आप वहां जाके FIR दर्ज कर सकते हैं। ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखिए। लॉ समझिए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज, हम सब जानते हैं कानून की पालना, कानून पता होना चाहिए। और जितनी भी IT कंपनीज हैं उनको IT रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ISO सर्टिफिकेशन 27001 की कंप्लायंस होनी बहुत जरूरी है। कंपनी ऑडिट नहीं करा रही है तो प्लीज ध्यान रखें, इंश्योर करें, सेफ रहें फिजिकल वर्ल्ड में भी और साइबर वर्ल्ड में। टू मैम। Thank you so much, sir. What a description about कि किस तरीके से हम बहुत सारी चीजों को इतना लाइटली ले लेते हैं हमारी लाइफ में, फोटोज को लेके, कुछ डिटेल्स को लेके, हमारी अपनी खुद की डिटेल्स को लेके, बहुत हेल्पिंग नेचर हो गया। अपना लैपटॉप, अपना कंप्यूटर किसी और को यूज करने के लिए दे देते हैं, किसी और के कंप्यूटर और लैपटॉप में बहुत जल्दी से हम छेड़छाड़ी कर देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बिना सोचे समझे ऐसी चीजें कर जाते हैं जिनका हमें आइडिया ही नहीं होता है और दे टर्न इनटू बी अ क्राइम। कई बार ऐसा भी आपने जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत बार ऐसी चीजें हैं जो नोइंगली अननोइंगली हम करते जा रहे हैं रिगार्डिंग द ऑब्ससेनिटी ऑफ एनीथिंग, या किस तरीके से आपकी
बहुत सारी क्रेडेंशियल्स हैं, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जो सिर्फ आपकी हैं, पर हम बहुत बार इन्फ्रिंज कर जाते हैं, उन चीजों को ब्रीच कर जाते हैं। हम अपने आप से भी सतर्क रहने की हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरीके से इस कोरोना टाइम में हमसे हमारी गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही है, वैसे ही रेगुलर टाइम्स में हमारी गवर्नमेंट हमसे रिक्वेस्ट करती रहती है कि प्लीज डोंट शेयर एनीथिंग ऑब्सीन, डोंट किसी भी तरीके से आप ऐसा कोई भी ह्यूमर स्प्रेड ना करें जिसकी वजह से chaos क्रिएट हो जाए सोसाइटी में। वी ऑल लिविंग हियर to develop a great society, to make it a great place to live in. So thank you so much निश्चित sir. I think कि आपने जो information दी है और चिराग ने जो information दी है, it's a collaboration of a great panel of discussion, a great information created by us. आपकी इस information से I am sure बहुत सारे ऐसे youth हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो knowingly या unknowingly कुछ ऐसी गलतियां कर रहे थे, उन्हें पता भी नहीं था कि हम ये गलतियां कर रहे हैं। But I am sure after listening your session, after knowing so much about the particular laws, people are more aware. They will definitely want to know about this particular law. Please feel free to consult any of our panelists by asking any of the questions in the chat box. Please go through that chat box. Thank you so much, Nishchit sir. Thank you so much, Chirag. Your things are really helping us to know the cyber this whole symmetry of the cyber law and cyber crime. Talking about cyber crime, talking about anything which goes wrong, brings up to the cops, to the heroes of the country, brings us to the people जो हमें बहुत सारी ऐसी चीजों से बचाते हैं। क्राइम के दूसरी डेफिनेशंस या दूसरा हम पहलू कह दें कि हमें उनसे बचाने वाले जो लोग हैं, इट्स टाइम टू लिसन टू हिम, टाइम टू लिसन टू अ पर्सन जो हमें ना केवल अवेयर करेंगे पर ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे कि किस तरीके से हम जिन चीजों को लाइटली ले लेते हैं, जिन चीजों को कैजुअली ले लेते हैं, किस तरीके से उनके रेप्रोकशंस हमको फेस करने पड़ेंगे। अभी आपने सिर्फ लॉ पता किया कि किस किस तरीके से गवर्नमेंट ने हमारे लिए लॉ बनाए हैं। लेट्स टॉक अबाउट द पनिशमेंट, द बिटर ट्रूथ ऑफ दिस होल सिनेरियो. Parminder sir is the right person to tell you guys about this particular thing. Over to you, Parminder sir. We have a lot to learn from you. Over to you. थैंक यू जूही, जय हिंद एवरीबॉडी। वैसे बहुत कुछ क्लियर कर दिया है चिराग सर ने और निशित सर ने, काफी कुछ क्लियर हो गया है कैसे हमें करना है, लॉ क्या है, साइबर क्राइम क्या है। मुझे काफी सालों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, सो आई विल ट्राई टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड आई विल शेयर सम केस स्टडीज विद यू। सो साइबर क्राइम क्या है, निशित सर ने बताया कि जहां परंपरागत जो अपराध है वो जब टेक्निकली उसको किया जाए, कंप्यूटर उसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो उसको हम साइबर क्राइम में इंक्लूड करते हैं। और लॉ के बारे में भी आपको बताया। मैं अभी जो टॉपिक हमारा है अपराइजिंग ऑफ साइबर क्राइम, ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ओके, सो नाउअडेज डिजिटाइजेशन होने के बाद जब पेमेंट सब ऑनलाइन हो गया है, और क्राइम करने का एक उद्देश्य हमेशा होता है, बिना उद्देश्य के कोई क्राइम नहीं होता है। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि किसी को पैसा चाहिए, किसी को जमीन के लिए चाहिए, तो क्राइम क्यों किया जा रहा है कि किसी का कोई मकसद है जो कि उसे फुलफिल करना है। वो पैसा कमाना हो सकता है, किसी से राइवलरी लेना हो सकता है, किसी को परेशान करना, बुलिंग करना, किसी का पीछा करना डिजिटली हो सकता है। जब हम ये सभी काम टेक्नोलॉजी को यूज करके करते हैं और कंप्यूटर, इंटरनेट वगैरह इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम इसको साइबर लॉज के अंडर इन्वेस्टिगेट करते हैं। दूसरे लॉज आईपीसी और दूसरे वुमेन मॉडेस्टी वगैरह और भी बहुत सारे लॉज हैं, जैसा निशित सर ने बताया। तो साइबर क्राइम जब इन्वॉल्व के एक्ट जब उस पर एप्लीकेबल होते हैं, तो हम उसको अंडर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सो नाउअडेज जो अलग अलग क्राइम है, हैकिंग, हम मोटा मोटा जानते हैं कि हैकिंग हो गया, मेरा फोन हैक हो गया, सिस्टम हैक हो गया, बट टिपिकली गलती और लापरवाही सबसे पहले हमारी होती है। मैंने आपको दोबारा रिपीट करूंगा, सबसे बड़ी लापरवाही हमारी होती है। पहले हम आगे चल करके किसी को एक्सेस देते हैं, लापरवाही करते हैं और किसी को अंदर आने की इजाजत देते हैं,
चाहे वो हमारा फोन हो, लैपटॉप हो, बैंक अकाउंट हो, या फिर और हमारा कोई ग्रुप हो सकता है, सोशल ग्रुप हो सकता है। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि ऐसा हम नहीं करें। नहीं करने के लिए क्या क्या आपको मेजरमेंट्स या प्रिकॉशंस करने चाहिए, वी विल डिस्कस। सो इसमें विक्टिम कौन हो सकता है साइबर क्राइम का? जैसा हम लोग देखते हैं, इसमें हर एक एज ग्रुप का, हर एज इकोनॉमिक ग्रुप का, हर इकोनॉमिक ग्रुप हो गया, हर फाइनेंशियल पर्सन हो गया, कम्युनिटी का कोई भी पर्सन इसका विक्टिम हो सकता है। इवन घर के बच्चियां, जो कि बच्चे, इवन वो गर्ल हो या बॉय हो, अगर वो मोबाइल यूज कर रहे हैं, कोई लिंक उनके पास आता है या खेली खेल में, और बिना जाने सोचे समझे वो उस पर क्लिक कर लेते हैं, वहां से बहुत सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। लाइक मैं ऑफिस में हूँ, मेरे पास कोई स्पैम मेल आ गई, जैसा चिराग सर ने बताया, मेल आती है मैन इन मिडिल, जो ईमेल हैक हो जाती हैं और अकाउंट डिटेल चेंज कर दी जाती हैं, और लाखों करोड़ों रुपया किसी दूसरे देश में दूसरे खाते में चला जाता है। हमने ऐसे बहुत सारे केस मैंने इंडिविजुअली सॉर्ट आउट किए हैं, हैंडल किए हैं, और लोगों को कंपनसेट किया है, पैसा वापस भी दिलवाया है, और गिरफ्तारियां भी की हैं। बट हम अवेयर नहीं हैं, हम जाने अनजाने ऐसे लिंक पे क्लिक कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमें उसमें हमारा इंटरेस्ट दिखाई देता है। लाइक आई एम डूइंग बिजनेस, मेरे पास कोई मेल आया कि आपको एक ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है, आई एम वेरी कीन टू सी क्या ऑर्डर हो सकता है, मुझे कितना फायदा होगा, मैं बहुत जल्दी में उसको क्लिक कर देता हूँ, और बैकग्राउंड में वो वायरस वगैरह उसमें इंस्टॉल हो जाते हैं, और कोई थर्ड पर्सन मेरे और किसी दूसरे सप्लायर, जो मेरा जुनायन सप्लायर या फिर बायर है, उसके बीच में कोई तीसरा आदमी रोल प्ले करने लग जाता है। इसे कहते हैं मैन इन मिडिल, और आगे मैं इसमें डिस्कस करूंगा। इसके अलावा आप अपने सोशल ग्रुप में आप कमेंट कर रहे हैं, अभी नाउ ए डे जैसा कि लॉकडाउन के टाइम पे चल रहा है, पीपल्स आर फ्री, वो लोग फेसबुक पे अपना टाइम ज्यादा दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे अपना टाइम ज्यादा दे रहे हैं, बट उन्हें नहीं पता होता, जैसा निशित सर ने कहा कि बहुत बार ये कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि ऐसा करना क्राइम है। दिस इज नॉट एक्सक्यूज। अभी एक रिसेंट केस हमने किया था, एक कोई सोशल एक्टिविटीज के ऊपर कमेंट किया, एक रिटायर्ड पर्सन है, ही हैज लॉट ऑफ टाइम, उन्होंने फेसबुक पे कमेंट किया, मैं अगेंस्ट जो कम्युनिटी है उसके पीपल, उसके लोगों ने उसको शेयर किया, ओके, और बहुत अच्छे मकसद से उसे शेयर किया था। उसमें लिखा था कि इसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए, बिकॉज ये कम्युनल एक्टिविटीज कर रहा है, इससे समाज में शांति को खतरा है। सो ऑल 3 persons आर अरेस्टेड बाय अस। तो उनका कहना था कि हमने तो सर ऐसा कहा था, बट नो, दिस इज नॉट योर ड्यूटी। आपको ऐसा आपने किया, शेयर किया, फिर उस पर 1000 लोगों ने कमेंट किया, तो वो एक से एक प्रोपोगेट होता जा रहा है। योर ड्यूटी इज ओनली दिस, गो टू पुलिस एंड टेल अबाउट द होल स्टोरी। पुलिस है अथॉरिटी टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन हु क्रिएट दैट कंटेंट। ओके, होप आप समझ गए होंगे। तो ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि हमें नहीं पता था इसलिए हमने कोई क्राइम नहीं किया है। हो सकता है आप शेयर कर दें और आप भी उस क्राइम में एक पार्ट बन जाएं और आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाए और आपके खिलाफ लीगल एक्शन स्टार्ट हो जाए। सो ऑलवेज बी केयरफुल, कंटेंट जांचना बहुत जरूरी है। टुडे मॉर्निंग, जस्ट एन एग्जांपल, एक डॉक्टर साहब की तरफ से एक कमेंट आया कि मास्क आप कम से कम लगाएं, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। सो ऑल दैट देयर वाज साइंटिफिक facts in the Facebook, WhatsApp message. I just make a call to doctor and try to make confirm that the message was created by him. So what he told कि मेरे पास कहीं से आया था, मैंने उस पर कॉपी किया, he is a designated doctor in a big hospital, उसने अपना नाम डाल दिया और आगे भेज दिया। मैंने डॉक्टर साहब इट्स नॉट राइट, गवर्नमेंट कहती है आप उसके बिल्कुल अपोजिट लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं, इट्स नॉट राइट। सो डोंट डू दैट। कॉपी पेस्ट कैन बी वेरी हार्मफुल टू you and your family. So
ये हो गया, बिजनेस का हो गया, बच्चों का हो गया। तो आप फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक पे जैसा चिराग सर ने, जूही मैम ने और बाकी सभी डेजिग्नेटेड पैनलिस्ट ने बताया, नाउअडेज कोरोना का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, हम सब एक दूसरे की हेल्थ के लिए लेकर के बहुत चिंतित हैं, फैमिली मेंबर्स को लेकर के चिंतित हैं। यदि मुझे कोई बताएगा कि मैं लाइक दैट, फॉर एग्जांपल चिराग यदि मुझे कहता है ऑनलाइन कि आई एम एडमिटेड इन हॉस्पिटल, आई वांट सम मनी, डेफिनेटली आई विल डिपॉजिट सम मनी इन हिज सो कॉल्ड अकाउंट और पेटीएम और यूपीआई अकाउंट। कर सकता हूं मैं और कर भी दूंगा। अभी क्या चल रहा है कि फेसबुक प्रोफाइल्स बहुत सारी बनाई जा रही हैं और खुद को या अपने रिलेटिव को हॉस्पिटलाइज होने का बहाना दे करके बहुत पैसा लोगों से ऐंठा जा रहा है। सो ऐसा ना होने दें, थोड़ा प्रिकॉशन रखें। आप फेसबुक पे पहले से अपनी तरफ से मैसेज डाल सकते हैं कि मैं कभी इस तरीके से किसी को पैसे के लिए नहीं बोलने वाला हूं और इट्स नॉट द राइट वे टू आस्क फॉर मनी। तो फेसबुक हो गया आपका। व्हाट्सएप पे आई थिंक जोक पढ़िए, बट डोंट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल इश्यूज, डोंट मेक कमेंट ऑन द कम्युनल इश्यूज। पर्सनल तो बिल्कुल ना करें। जैसा निशित सर ने बताया कि फोटो आपने शेयर कर दी किसी की, ऑब्ससीन कंटेंट हो गए, देयर आर लॉट ऑफ पेनल्टीज। हमें नहीं पता होता कि किस जुर्म के लिए कितनी सजा है। बीइंग ए कॉमन मैन, आई नो, निशित सर नो, चिराग नो, जूही नो, मे बी, बट आम आदमी को नहीं पता होता कि उसके सामने कितनी बड़ी समस्या इस बारे में आ जाएगी। फेक आईडीज, पासवर्ड आप हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें। सोशल इंजीनियरिंग आज की डेट में, डेटा थेफ्ट और सोशल इंजीनियरिंग इज रियली वरिड। हमें बहुत चिंता है इस चीज के लेकर के। हम लोग काफी कंपेनिंग इस बारे में करते हैं। बहुत जनरली एक छोटी चीज है कि आई एम इन शॉपिंग मॉल एंड समवन शॉपकीपर आस्क अबाउट माय कांटेक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस, व्हाट डू यू थिंक? क्या करेंगे उसका वो लेकर के? मुझे बर्थडे विश करेंगे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। वो लोग इस चीज को लेकर के एक बल्क डेटा बना करके किसी और फ्रेडस्टर्स को पास ऑन करते हैं, सेल करते हैं। एक दो जगह मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ कि यदि मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दिया तो ही डिनाइड टू गिव मी द गुड्स। ओके, बट जहां तक मैं कहूंगा अपने कॉन्टेक्ट नंबर ना शेयर करें आप, क्योंकि इससे आपको ढूंढना बहुत बहुत आसान हो जाता है। बिकॉज कहीं ना कहीं जब हम ऑनलाइन लाइफ जी रहे हैं, कुछ ना कुछ पीछे ट्रेल्स छूट जाती हैं। हम अपना पहचान छोड़ते जाते हैं, जिससे कि अपराधी एक के बाद एक तार जोड़ते हुए हम तक आसानी से पहुंच जाते हैं। क्या हो सकता है? हो आप मेरी बात से सहमत होंगे शायद। इसलिए ऑनलाइन आप बिहेव करते हुए बहुत सेफ रहें। क्रिमिनल हर जगह पे बैठे हुए हैं। जैसा चिराग सर ने कहा कि हम गूगल करते हैं, बहुत सिंपल है। यदि मेरे साथ ऑनलाइन कुछ चीटिंग हो गई है तो आई एम सो स्मार्ट, मैं सबसे पहले सॉल्यूशन ऑनलाइन ही तलाश करूंगा। तो मैं गूगल पे जाता हूँ, फिर से मैं ढूंढता हूँ और फिर से मुझे कोई दूसरा एक नया क्रिमिनल मुझे ट्रैप कर लेता है और मैं पहले खो चुका होता हूँ, थोड़ा बहुत और खोता हूँ, देन आई फिजिकली केम टू पुलिस स्टेशन एंड मेक ए कंप्लेंट। So don't do this. Always verify the information that is available on internet, 2 or 3 different platforms. Chirag sir can help you to solve this problem. He can tell us the different platforms where we can authenticate or verify the information. Okay, so अभी लॉकडाउन में ऐसा क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दूसरा क्राइम इसमें जो बड़ा है वो है आपका यूपीआई की जो आईडीज हैं उनको लेकर के। अभी हमने एक केस किया था जिसमें फेक यूपीआई आईडी जो पीएम रिलीफ फंड है या सीएम रिलीफ फंड है उसके सिमिलर मिलती हुई बनाई। हमने न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी काफी पब्लिक अवेयरनेस के लिए इस चीज को पब्लिश कराया। इसके बावजूद बहुत सारे लोगों ने फेक यूपीआई आईडीज में पैसा जमा करा दिया
और इसमें करोड़ों रुपया, अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो करोड़ों रुपया जो कि जुनाइनली गवर्नमेंट के पास रिलीफ के लिए जाना चाहिए था, वो फ्रॉडस्टर्स के अकाउंट में चला गया है। जैसा कि निशित सर ने आपसे बहुत चीजें डिस्कस की, आरबीआई सर्कुलर के बारे में भी डिस्कस किया। अगर आपके साथ ऐसा कोई चीटिंग हो जाती है जिसमें आपके पास किसी की फिशिंग से यदि इंफॉर्मेशन आती है और आप अपना पैसा गंवा बैठते हैं जिसमें आपकी गलती नहीं होती है, निशित सर के अकॉर्डिंग 72 घंटे में हमें कंसर्न बैंक को कंप्लेंट करनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा इसमें पुलिसिंग का पार्ट ऐड करता हूं। आपके पास जितने भी मैसेजेस इस रिगार्डिंग आते हैं उन सब मैसेजेस को आप डिलीट ना करें, मैसेजेस को एक पेपर पर लिख लीजिए, क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन आईडीज होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं ट्रेस करने के लिए कि पैसा कहाँ गया, किसके अकाउंट में गया, और हम उसको आगे कैसे ढूंढ करके आपको वापस दिलवा पाएंगे। इसके बाद आप तुरंत ऐसे जो केसेस होते हैं वो मैं बताना चाहूंगा कि शनिवार, फ्राइडे नाइट या सैटरडे को मैक्सिमम होते हैं 80 to 90%, बिकॉज नेक्स्ट डे बैंक बंद होता है तो आप बैंक को अप्रोच नहीं कर पाते, और बहुत कम लोग नेट बैंकिंग वगैरह यूज करते हैं और इस चीज का वो लोग फायदा उठाते हैं। आप तुरंत अपने बैंक को इन्फॉर्म कीजिए। जब भी आपके पास ट्रांजैक्शन का मैसेज आता है उसमें एक नंबर जरूर लिखा होता है, आप देखिएगा कि यदि ये आपने नहीं किया है तो नीचे लिखे नंबर पे आप कांटेक्ट करके इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। दैट नंबर इज 100% जुनाइन नंबर। आप नेट पे जाके मत ढूंढिए कि एसबीआई का कॉल सेंटर का नंबर क्या है, हो सकता है आप गलत हाथों में चले जाएं। ओके, उसके बाद आप तुरंत स्टेटमेंट निकलवाएं और पुलिस के पास आए, मैसेजेस का रिकॉर्ड दें, ओटीपी कब कब आए आपने बताया नहीं बताया इसका रिकॉर्ड दें, बैंक स्टेटमेंट दें और एक कंप्लेंट दें। और बैंक में एक रिड्रेसल फॉर्म अवेलेबल है, उसे आप भरें। अगर आपकी गलती नहीं है तो विद इन 72 आवर्स यदि आप कंप्लेंट करते हैं तो बैंक इज लाइबल टू रिएम्बर्स 100% ऑफ योर फ्रॉड मनी। वकील साहब ने भी ऐड किया, मैं भी इसको बताना चाहूंगा, जितना आप देर करेंगे बैंक में जाने से उतना ही आपको बैंक कम पैसा वापस लौटाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप अपने बैंक को इस बारे में कंप्लेंट कीजिए। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो ईमेल्स पे आप विशेष ध्यान रखिए। आप अपना कोई जो राउटर वगैरह होता है और जो फायरवॉल्स वगैरह हैं वो आप यूज कीजिए। आप फ्री पासवर्ड्स वगैरह आप किसी को शेयर ना करें। मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करना चाहूँगा। बहुत एक अच्छे वेल एजुकेटेड और एक कारपोरेट सेक्टर में हमारे कंप्लेनेंट काम करते हैं और उनके पास मोबाइल में एक एसएमएस आता है। ये स्टडी इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं, इस केस को हमने सॉर्ट आउट भी किया है। उसके पास पहली एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि क्रिमिनल्स जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो मौसम के हिसाब से चलते हैं। आप थोड़ा हंसेंगे बट अभी इनकम टैक्स का मौसम चल रहा है कि हम अपना टैक्स फाइल कर रहे हैं, ई फाइलिंग कर रहे हैं, तो वो इस चीज का सहारा लेते हैं। अभी कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना से रिलेटेड मैसेज भेजेंगे। ओके, जब फेस्टिवल आएगा तब आपके पास शॉपिंग वेबसाइट्स या जो अमेजोन फ्लिपकार्ट से मैसेज आना शुरू हो जाएंगे कि आपने ये जीत लिया है, आपने करोड़ रुपए जीत लिए हैं। ओके, तो वो देखते हैं कि अभी माहौल कैसा है, उस हिसाब से वो आपको ट्रैप करते हैं। तो इस केस में, ये केस हुआ था जुलाई में, और जुलाई में चूंकि रिफंड वगैरह इनकम टैक्स जब हम भरते हैं तो रिफंड का टाइम होता है कि कुछ रिफंड्स आ रहे हैं, जीएसटी रिफंड आ रहे हैं, इनकम टैक्स रिफंड आ रहे हैं। तो उन्होंने एक मेल आया उनके पास रेडिफ अकाउंट पे कि आपका इतना कुछ 1000 रुपए का रिफंड आया है, आप सबमिट कीजिए अपनी डिटेल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी कोई भी डिटेल नहीं मांगता है। उन्होंने सबमिट की, सबमिट क्या किया, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अपना अकाउंट नंबर भी दे दिया, पैन कार्ड की डिटेल्स दे दी, आधार की डिटेल्स दे दी, अपने बैंक के की डिटेल दे दी, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया, एड्रेस, इवन एड्रेस भी दे दिया। नेक्स्ट डे उनके मोबाइल पे जो नंबर उनका बैंक में रजिस्टर था, एक छोटा सा मैसेज आया। क्योंकि वो नंबर घर पे ही रहता था और एक स्मार्टफोन में था, एलजी का फोन था, बच्चे ने मोबाइल खेलते हुए उस पर क्लिक किया और एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई जो दिखाई नहीं देती थी। उस एप्लीकेशन और
अब आप समझ गए होंगे कि रेडिफ मेल पे एक फिशिंग मेल आया था, प्रोडक्टर्स ने अटैक किया था और वो सारी इंफॉर्मेशन उनकी उन्होंने ले ली थी और बैंक अकाउंट की उनके पास डिटेल थी। अब मोबाइल जिस पे ओटीपी आना था उसको उन्होंने हैंडल करना था, तो बच्चे उसमें खेल रहे थे और वो इंस्टॉल हो गया, अब उसका मोबाइल भी हैक हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि सब कुछ किसी अनजान आदमी के हाथ में जा चुका था। तो जैसे ही उन्होंने रात को 11 बजे एक्टिविटी स्टार्ट की, एंड यू कांट बिलीव, उनका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट था, उनकी रात को एनईएफटी कभी नाइट में नहीं होता है, एनईएफटी हुआ, उनके अकाउंट से 17 लाख रुपए निकाल लिए गए, अलग अलग अकाउंट्स में चले गए। उन्हीं के आधार कार्ड से उन्हीं के नाम से कोटक महिंद्रा बैंक में एक ऑनलाइन अकाउंट भी खोल लिया गया, उसमें भी उन्होंने नेफ्ट से पैसे जमा कराए। सारे पैसे कई अकाउंटों से घूमते हुए एक जगह पेटीएम पेयू जो एग्रीगेटर है उसके थ्रू क्रिप्टो करेंसी खरीद ली गई। ओके, फिजिकली मनी नहीं रहा, मनी जो खातों में फिजिकली अवेलेबल था उसको उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर दिया। इसी दौरान उनके अकाउंट में कुछ एफडीज थी, क्योंकि आधार से वेरीफाइड होना था, ओटीपी उनके पास आ ही रहा था, ऑलरेडी मोबाइल हैक था, तो उन्होंने उनकी एफडीआर्स को ब्रेक कर लिया रात को, और वो पैसा भी उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया। क्रिप्टो करेंसी में डाल के उन्होंने क्रिप्टो करेंसी परचेज की और उसे आउट ऑफ इंडिया ट्रांसफर कर दिया। ओके, सेल नहीं किया। देन तो आप समझ सकते हैं कि मोबाइल के ऊपर अननोन लिंक पे क्लिक करना कितना महंगा हो सकता है। एक अननोन ईमेल एड्रेस जिसको आपने वेरीफाई नहीं किया है उस पे क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स देना आपके लिए कितना महंगा साबित हो सकता है। तो उनका सारा पैसा आउट ऑफ इंडिया जा चुका था, उसको इन्वेस्टिगेट किया। कुछ आईपी एड्रेसेस होते हैं, आई थिंक नाउअडेज एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट व्हाट इज आईपी। एक आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है, पुलिस इसी के बेस पे साइबर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करती है। जैसा कि निशित सर ने कहा कि हमारा आईपी कहीं भी किसी भी वक्त मिसयूज हो सकता है, सो जो भी सिक्योरिटी फीचर्स हम वाईफाई राउटर या अपने मोबाइल में यूज करें, इट विल बी बेटर फॉर अस। तो ये एक केस स्टडी था। और अभी फेसबुक के बारे में भी मैंने आपको बताया, एटीएम डेबिट कार्ड के बारे में चिराग सर ने काफी डिस्कस किया, मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। क्रिमिनल्स जो स्कीमिंग करते हैं या क्लोनिंग करते हैं कार्ड्स की, वो लोग एक छोटा डिवाइस अपने पास रखते हैं। आप रेस्टोरेंट में हो सकते हैं, हमारे पास कैसे जाए, आप एटीएम मशीन पे भी यूज कर सकते हैं। एक अभी केस हुआ था जिसमें एटीएम मशीन के ऊपर एक बुजुर्ग आदमी का कार्ड स्वैप किया गया था और उनके सैलरी, ही इज ए पेंशनर एक्चुअली, उनके अकाउंट से 12 लाख रुपए की अमेजोन और इस तरीके से परचेजिंग कर ली थी। एंड द क्रिमिनल्स वाज सो क्लेवर, उन्होंने 2000 रुपए से ऊपर की परचेजिंग कहीं से भी नहीं की जिससे कि कोई भी ओटीपी विक्टिम के पास आता। इस केस को हमने सॉर्ट आउट किया और इसमें हमने 3 अरेस्ट भी किए। क्योंकि सभी कंज्यूमर गुड्स से उन्होंने परचेज किए थे तो पैसा वापस नहीं हो पाया। तो आप एटीएम मशीन में जाएं, कभी भी अपना कार्ड किसी के हाथ में ना दें। आप बैंक में, आप रेस्टोरेंट में, आप पेट्रोल पंप पे कर रहे हैं अपने कार्ड से, तो आप कार्ड अपने पास ही रखें, मशीन में आप उसको इंसर्ट करें और अपना पिन कभी भी किसी को ना बताएं। इसके अलावा एक जो आज बड़ी टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है वो है एनएफसी कार्ड। आपने सुना होगा या देखा होगा अपने कार्ड पे कि एक सिग्नल टाइप का बना होता है। तो नया जो ट्रेंड है अभी क्राइम का, जो कार्ड से पैसा निकल जा रहा है, तो आप कोई भी एक डिवाइस होती है, अगर मेरे पास वो कार्ड है जो कि एनएफसी एनेबल्ड है, ऑनलाइन वाईफाई पेमेंट होता है, यदि उस मशीन के पास हम कार्ड को लेके जाएंगे तो उसमें डालने की जरूरत नहीं है, पास में ले जाना ही काफी है और उस मशीन में जितना अमाउंट डाला है वो आपके खाते से डेबिट हो जाएगा। सपोज दैट आपके पर्स में वो कार्ड है और कोई क्रिमिनल आपके बगल से निकल रहा है, वो मशीन लेके निकला
और उसने 10,000 डालर, आपके अकाउंट में 10,000 है, तो डेफिनेटली आपके अकाउंट से 10,000 डेबिट हो जाएगा। तो अपने जो कार्ड हैं उनकी उनकी परमिशंस को आप कंट्रोल कीजिए। एक तो इंटरनेशनल परचेजिंग आप बंद रखिए, और ऑनलाइन पेमेंट करने का भी उसमें चेक आते हैं अपने, ऑनलाइन आप बैंक में जाके भी कर सकते हैं, ऑनलाइन नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। उसकी परमिशंस को आप कंट्रोल रखें, सारी परमिशंस ऑन ना करें, जो आपको जरूरत है आप उसी को ऑन रखें, इसके अलावा इससे ज्यादा आपको ऑन नहीं रखनी चाहिए। बाकी लॉ के बारे में निशित सर ने बताया, चोरी चोरी है, आप डेटा चुराएं, आप किसी की पिक्चर चुराएं, आप किसी के प्राइवेसी मतलब प्राइवेसी कंटेंट हो, मूवी हो, आप चुराएं। पोर्नोग्राफी के बारे में आपको बता दूं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा सर्विलांस रखती है। अगर आपका आईपी, मे बी कि आपका आईपी आप यूज कर रहे हैं या आपका कोई पड़ोसी यूज कर रहा है चोरी से, इट डिपेंड्स। अगर आपका आईपी ट्रेस होता है आप अरेस्ट हो सकते हैं। हम रेगुलर ऐसे केसेस पे कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसे क्रिमिनल्स को हम अरेस्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार पोर्नोग्राफी देखना इज नॉट ए क्राइम इफ एडल्ट, इन केस ऑफ ओनली एडल्ट पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या ट्रांसमिट करना दोनों ही अपराध है, क्राइम है। एडल्ट पोर्नोग्राफी आप देख सकते हैं, लेकिन आप किसी को भेजते हैं, डिसिमिनेट करते हैं, दैट इज क्राइम। सो आप किसी को ट्रांसफर ना करें, अदरवाइज आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। पोर्नोग्राफी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, आप ना देखें, इट विल बी बेटर, जस्ट अवॉइड इट। इसके अलावा चिराग सर ने काफी कुछ क्लियर कर दिया, फेक आईडीज वगैरह के बताया। फेक आईडीज फेसबुक पे आप अपना फेक आईडी खुद भी बंद करा सकते हैं। आप इम्पोस्टर रिपोर्टिंग कीजिए, फेसबुक आपको रिपोर्ट करने के लिए ऑप्शन देता है। व्हाट्सएप पे भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, सस्पिशियस अकाउंट्स को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे सस्पिशियस अकाउंट्स को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। कंटेंट जो अगेंस्ट नेशन है, कंटेंट जो अगेंस्ट कम्युनिटी है, कंटेंट जो अगेंस्ट पर्सन है, डिफेमेटरी कंटेंट्स हैं, यू कैन रिपोर्ट। हमें पोर्टल पूरी फैसिलिटी देता है। और निशित सर ने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने cybercrime.gov.in एक साइबर पोर्टल बनाया है। एवरीबडी कैन लॉज ए कंप्लेंट अगेंस्ट साइबर क्राइम। आप यदि अपनी पहचान नहीं बताना चाहते हैं तो आप वैसे भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, और पहचान बता के भी कर सकते हैं। तो उससे आपकी कंप्लेंट संबंधित थाना जहां आप रहते हैं या जहां आपके साथ वो इंसिडेंट हुआ है, वहां ऑटोमेटिकली ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगी और पुलिस उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर देगी। सो कोई भी छोटी, आपको ऐसा लगता है कि साइबर क्राइम मेरे कुछ 500 रुपए गए हैं, 1000 रुपए गए, क्या सुनाई दे रहा है? आई थिंक ओके ओके। सो वी आर हियर टू आंसर योर ऑल क्वेश्चंस। मैं इससे ज्यादा समय नहीं लूंगा। आई होप आप लोगों को सतर्क रहना है और सावधानी में ही सुरक्षा है। साइबर हमें नहीं पता कि दूसरे एंड पे कौन बैठा है जो हमसे बात कर रहा है। अभी मुझे सामने दिखाई दे रहा है चिराग सर हैं, जूही हैं, निशित सर हैं। आई कैन रिलाई कि मैं इन लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ और आप सब लोगों से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, बट एनोनिमसली इंटरनेट पे हमें नहीं पता कि हम किससे बात कर रहे हैं। सो प्लीज आप सेफ रहें और ऐसी चीजों पे आप भरोसा ना करें जिसे आप नहीं जानते हो। आप फेसबुक पे दोस्तों की लिस्ट या फिर लाइक के चक्कर में ना पड़ें, ये कभी भी आपको नुकसान दे सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद। जूही मैम, यू कैन टेक। Thank you so much, Parminder sir.
आई फील पुलिस को हम ऐसे ही कॉप्स को हम ऐसे ही हीरो नहीं बोलते हैं. यू आर अ लाइफ सेवर्स. और जिस तरीके से साइबर सिक्योरिटी लॉज हमारे पास बहुत है अवेयरनेस के लिए, वी हैव पीपल लाइक चिराग हमें बहुत अवेयर करते हैं, बट फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिन्हें पनिशमेंट के बिना ठीक नहीं किया जा सकता. सो इट वाज अ ग्रेट पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम यू कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. सो आई थिंक जिस तरीके का सिनेरियो आजकल चल रहा है, क्या करना क्या है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये जानना कि क्या नहीं करना है. सो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप कि जिस तरीके से आपने इंफॉर्मेशन दिया है उसको सभी लोग चैनलाइज कर पाएंगे, उससे सभी लोग अपनी लाइफ में अगर थोड़ा सा भी समझ लेंगे तो उन गलतियों से उन एक्ट से बच पाएंगे. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, it's a crime. I request you all to please be aware about it. Please don't watch child pornography. Please don't share child pornography. Coming up to sharing the passwords, sharing the IDs, please don't do it. It is for your security. OTPs are for you. Please do not share it with anyone. Please be aware कि किसी भी कंडीशन में आपसे आपका कोई OTP मांग रहा है, किसी भी कंडीशन में आपको किसी भी तरीके का कॉल आ रहा है, बी अवेयर अबाउट इट. आप अगर अवेयर रहेंगे तो परमिंदर सर को आप कम परेशान कर पाएंगे. परमिंदर सर हमारी सुरक्षा के लिए है, बट उन्हें तंग नहीं करेंगे हम. सो थैंक यू सो मच सर. जोक्स अपार्ट, वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमें सभी लोगों ने पहले ही भेजे थे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें थ्रू द मेल रिसीव हुए. तो आई हैव some questions जो मैं आप सभी के सामने रखना चाहूंगी. गिव मी अ सेकंड. Okay, so first question which we have is been asked by Sanjay Gupta ji. He is asking how to know which app is safe. Chirag, this is an open-ended question to you, where Sanjay ji wants to ask you how to know which app is safe. Yeah, basically all the application which are getting our data, जो भी हमसे परमिशन लेके हमसे डेटा ले रही हैं, और कल को वो कंप्रोमाइज हो जाती हैं तो डेफिनेटली हमारा भी डेटा कंप्रोमाइज होता है. बट सपोज वी हैव अ फोन, जस्ट एक नॉर्मल फोन है. जस्ट मैंने अपने फादर के फोन में फेस किया था. उनके फोन नया फोन था, मैंने उसमें डायलर ओपन किया, जस्ट अ डायलर जिससे नंबर डायल करते हैं. मैंने उसको वहां पे डायलर पे गया, मैंने एक नंबर डायल किया. नंबर डायल करने के बाद जैसे ही मैंने कॉल बटन प्रेस किया, उसने मुझसे पूछा कि कॉन्टैक्ट्स की मुझे परमिशन चाहिए. ओके, कॉन्टैक्ट्स की परमिशन माइट बी रिक्वायर्ड फॉर अ डायलर कि आपका वो किसका कॉन्टैक्ट नंबर है. it was asking me for front camera, means it was asking the permission of my camera, it was asking the permission of my storage. okay, तो हम जब परमिशन देते हैं किसी भी एप्लीकेशन को, तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो परमिशंस उस एप्लीकेशन के लिए रेलिवेंट है या नहीं. बिकॉज आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम्स बहुत ज्यादा सिक्योरिटी को लेके कंसर्न है. ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर्स ने इतनी पॉलिसीज बना दी है कि कोई भी एप्लीकेशन विदाउट आपकी परमिशन के डेटा नहीं ले सकती है. ओके, तो जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो हम अलाउ करने से बेटर है कि एक बार हम उसको देखें कि वो हमसे कौन सी परमिशन ले रहा है. दूसरी चीज, मोस्टली ऐसी एप्लीकेशंस जो आपसे आपकी लोकेशन की और कॉन्टैक्ट्स की और मैसेजेस की परमिशन मांगती हैं, आपको सबसे ज्यादा उस पर ध्यान देना है कि हमें क्या वो ये 3 परमिशंस देनी रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये 3 परमिशन से सबसे ज्यादा आपको लॉस होता है, क्योंकि आपके सारे कॉन्टैक्ट्स उनके पास चले जाते हैं. आपको रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं, एंड दे कैन इजीली रीड योर OTP. वो आपके OTPs को भी पढ़ सकते हैं बिकॉज दे हैव द परमिशन ऑफ योर मैसेजेस. तो हमें कौन सी एप्लीकेशन को क्या परमिशन देनी है वो हमको कैटेगराइज करके देखना होगा. एंड आई थिंक इस चीज में एप्पल इज बेटर. उसके अंदर ये सिस्टम बेटर है कि आप बाद में जाके उसकी परमिशन भी हटा देते हैं तो एप्लीकेशन बार बार नहीं पूछती और वो रनिंग रहती है आपकी. सो दिस इज माय पॉइंट, दिस इज माय व्यूज. Yes, definitely, Chirag. I think yes, sir. I want to add something. आप Definitely. जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हैं, आपको पता है कि आप किस पर्पज के लिए कर रहे हैं.
अगर उस पर्पज के अलावा कुछ भी आपसे एप्लीकेशन पूछती है, इट मे हार्म फॉर यू। Correct, correct, sir. A correct piece of advice, rightly said Chirag and rightly said Parminder sir. कई बार हम ऐसा होता है कि हम रियलाइज ही नहीं कर पाते कि हमसे ये क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहे हैं। हम बस अलाउ करते जाते हैं हर क्वेश्चंस को, या हमसे जितनी भी चीजें पूछी जाती हैं हम उसमें अलाउ करते जाते हैं विदाउट इवन रीडिंग। हम कई बार उनको पढ़ते भी नहीं है कि उसके अंदर हमसे एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है। So rightly said, little awareness is important. There's a question for Parminder sir. There's Anant Dubey who wants to ask how cryptocurrency is helping cyber criminals. Is there any way to trace out them? Okay. I'll repeat, how cryptocurrency is helping cyber criminals. Is there any way to trace out them? ओके, देखिए पुलिस से हर कोई छुपा रहना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, तो क्रिमिनल्स अगर डायरेक्टली पैसा लेते हैं, किसी अकाउंट में पैसा लेते हैं, यूपीआई आईडी में पैसा लेते हैं, तो हमारे लिए उसको पकड़ना बहुत ही आसान होता है, हम बहुत जल्दी उस तक पहुंच पाते हैं। बट क्रिप्टो करेंसी जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ओके, क्रिप्टो करेंसी इज जस्ट ए डिजिटल करेंसी जो कि किसी वैलेट में रहती है, वैलेट में स्टोर की जाती है, और वो वैलेट कहाँ होता है ये भी हमें नहीं पता होता। हम कोशिश करते हैं, और इसको फाइंड आउट और ट्रैक करने का जो प्रोसेस है, जिसे हम ब्लॉकचेन एनालिसिस कहते हैं, वो बहुत ही टेक्निकल पार्ट है। चिराग सर वगैरह कर पाएंगे, आई थिंक हम इतने कैपेबल नहीं हैं कि हम इतना टेक्नोक्रेट हो जाएं, और इतना समय भी नहीं है। तो क्रिमिनल्स को चाहिए एक ऐसा तरीका जिसमें पुलिस उनको ट्रैक ना कर पाए, और क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट वही एक आसान तरीका है। और क्रिप्टो करेंसी इंडिया में वैलिड या इनवैलिड नहीं है, देयर इज नो स्टेटस। लेकिन आउटसाइड ऑफ इंडिया बहुत सारी कंट्रीज में क्रिप्टो करेंसी वैलिड है, तो वो क्रिप्टो करेंसी में पैसा लेकर के किसी अपने जानकार के पास पैसा ट्रांसफर करके वहां से किसी दूसरे रूट के थ्रू वापस पैसा इंडिया में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो अपने आप को छुपाने के लिए, ट्रायल्स को मिटाने के लिए, हाइडिंग रखने के लिए क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट्स, रैंसमवेयर वगैरह लेना बहुत आसान है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी क्रिमिनल्स को बहुत सपोर्ट करता है। ओके, या जूही मैम? Yeah, sir. Thank you so much. I think it was a clear information कि आप प्लीज क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझ लीजिए, पहचान लीजिए कि क्या है, and I think you will be able to understand how it works. And the next question says, when a bank fraud has happened with me, what are the first steps we should follow to get our money back? बहुत लोगों का क्वेश्चन है ये। दिव्या जी एक ये क्वेश्चन पूछ रही है सर कि इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। आई थिंक परमिंदर सर एंड निश्चित सर विल बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो परमिंदर सर, कि व्हाट शुड वन डू व्हेन दे हैव बैंक फ्रॉड? ओके, जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को सजेस्ट किया था, जैसा भी आपको लगे, बैंक फ्रॉड बहुत तरीके के होते हैं। आपके अकाउंट से पैसा भी कट सकता है, आप एटीएम पे ना गए हो, आप बैंक में ना गए हो, उसके बावजूद आपके खाते से डेबिट हो सकता है, आपके अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो सकता है, आपके अकाउंट से सर्विसेज का पेमेंट हो सकता है, लाइक कि मैं आपके अकाउंट से मेरा बिजली का बिल ही पे कर दूं। ओके, आपके अकाउंट से ऑनलाइन शॉपिंग हो सकती है। देयर इज अ लॉट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक फ्रॉड्स। एनीवे, यहाँ पे आपके अकाउंट से पैसा गया है, सबसे पहले आपको बैंक को इन्फॉर्म करके, जहां जिस मीन्स से आपके साथ फ्रॉड हुआ है, लाइक एटीएम कार्ड, जस्ट ब्लॉक योर एटीएम कार्ड फर्स्ट। ओके, अगर आपके बैंक से गया है, नेट बैंकिंग से हुआ है, जस्ट स्टॉप योर नेट बैंकिंग सर्विसेज। ओके, एक चेक लगा दीजिए अपने अकाउंट पे। सबसे पहला आपका एक्शन होना चाहिए उसको सेफ रखना, अपने अकाउंट को, कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसको आप पहले सेफ कीजिए। देन कम टू पुलिस स्टेशन विद ऑल द ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, बैंक स्टेटमेंट। ओके, कुछ बैंक ये कहते हैं, जैसा निशी सर ने बताया था, रिजर्व बैंक का एक सर्कुलर है, वो बहुत क्लियर है, उसमें बैंक को पुलिस की कंप्लेंट लेने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन बैंक आपको
मिसगाइड करते हैं। वो कहते हैं कि आप पुलिस की कंप्लेंट कीजिए, लेके आइए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप डायरेक्टली बैंक के पास जाके विदाउट एनी एफआईआर और पुलिस कंप्लेंट यू कैन लॉज योर कंप्लेंट इनटू द बैंक। आप यदि पहले पुलिस के पास आते हैं, पुलिस की कंप्लेंट का पेपर लेकर के भी बैंक जा सकते हैं, बट बैंक के पास आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। तो उसके बाद आप हमारे पास आए, पुलिस के पास आए, कंप्लेंट कीजिए, अपना बैंक स्टेटमेंट, आप कार्ड का ओरिजिनल जो डेबिट या क्रेडिट I think, Chirag, is it only if I'm not able to listen or if everybody cannot listen? I'm also not able to listen. I'm also unable. Okay, so we have Nishchit sir also. We have Nishchit sir also with us till the time we solve the problem of internet with Parminder sir. We want some views from Nishchit sir. Sir, there is a question which says that कि बहुत बार ऐसा हो रहा है कि we are not able to do a lot with this particular laws and criminal things. So what is your take? I think Parminder sir is back with us. So before you complete, sir. प्लीज निश्चित सर इसमें थोड़ा और आगे क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बैंक जो हैं वो डिनाई कर देते हैं पेमेंट करने के लिए। तो जो कंज्यूमर कोर्ट और बाय लॉ कैसे रिलीफ मिलता है, प्लीज निश्चित सर प्लीज। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, अगर आपके पास ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है तो बहुत सजग रहिए। जैसा सर ने बताया, प्रवीण सर ने, फ्राइडे सैटरडे संडे रात को हुआ है क्राइम, बड़ा स्ट्रेटेजिक होता है, लेकिन आप सजग रहिए, चिंता ना करें। जैसे ही आपके साथ फ्रॉड होता है, आपके पास कस्टमर केयर नंबर है, ऑथेंटिक कस्टमर केयर नंबर। जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ, पैसा निकला, उसी नंबर को आप डायल करके डिसेबल कराइए, इंटरनेट बैंकिंग डिसेबल कराइए, ताकि इमीडिएट आपका बैंक उसको स्टॉप करे, ताकि फर्दर मनी नहीं निकले। सबसे इम्पोर्टेंट आपको उसका सेफ गार्ड है। उसके बाद पुलिस स्टेशन पे जाइए, आप वहां जाके अपनी बातों को बताइए, ताकि स्मार्ट पुलिस ऑफिसर जैसे प्रवीण सर हैं, वो सीधा ही उस ट्रांजेक्शन को रुकवा सकते हैं। मिडिल में ही हो सकता है वो वॉलेट में ट्रांसफर हुआ हो और आगे इन ट्रांजिट हो हुआ है अमाउंट। बहुत से पुलिस ऑफिसर्स ने इंडिया में बहुत करोड़ों रुपए बचाया है विक्टिम्स का। तो टाइमली पुलिस को अप्रोच करें। और जैसा सर ने बताया, बैंक डिनाई नहीं कर सकता कि भैया पहले एफआईआर करिए। बैंक इज लायबल, बैंक को रिपोर्ट करनी मैंडेटरी है, कहीं नहीं लिखा है एफआईआर करानी। उसके बाद जैसे एफआईआर हो गई, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, नहीं कर पाए, विक्टिम हैं वो अक्यूज नहीं पकड़ पा रहे, तो अगर आपने लाइबिलिटी आपकी नीड से, जैसे जो आरबीआई का सर्कुलर है उसमें 3 लाइबिलिटी है, कस्टमर लाइबिलिटी, बैंक लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। अगर बैंक की लाइबिलिटी है, बैंक पूरा पैसा देगा। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, जैसे सिम स्वैप है, टेलीकॉम कंपनी ने सिम कार्ड इशू कर दिया, पैसे निकल गए, तो बैंक टेलीकॉम कंपनी देगी, बैंक देगा, हालांकि उसमें भी, लेकिन उसके लिए तरीके हैं। और थर्ड इशू ये है, जब आपने ओटीपी दिया वहां इशू है, लेकिन अगर आपने ओटीपी दे भी दिया तो ये चिंता ना करें, पैसा, लेकिन आप एफआईआर कराएं, पुलिस के पास जाएं, ताकि पुलिस उसको पकड़े और मनी रिकवरी करे। बहुत तरीके हैं। और उसके बाद भी अगर बैंक ने आपको पैसा रियम्बर्स नहीं किया जहां आपकी लाइबिलिटी नहीं है, तो आपके पास बहुत से फ्रंट्स हैं, बैंकिंग ओम्बुड्समैन भी है, आप बैंक को लिख सकते हैं। नहीं तो आपके पास कंज्यूमर केस भी है, और आपके पास आईटी सेक्रेटरी का भी, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, सेक्शन 43A। बहुत स्टेट्स में मतलब 1-1 करोड़ रुपए वापस मिले हैं। और राजस्थान पुलिस की साइबर सेल, मैं कहता हूँ, बहुत स्ट्रांग है। बहुत महाराष्ट्र की है, मध्य प्रदेश की है, सारी स्टेट 17-18 स्टेट्स की पुलिस के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। सब सजग हैं, सब अलर्ट हैं। हम विक्टिम को बस थोड़ा सजग होना जरूरी है। पुलिस हमारी सारी स्ट्रांग है, लेकिन हमें सजग होना है, हमें टाइमली बैंक को और पुलिस को रिपोर्ट करना है, ताकि हम उन कल्प्रिट्स को टाइमली पकड़ सकें। नहीं तो एक बार इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो गया, एक बार क्रिप्टो करेंसी में पैसा ट्रांसफर हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स परचेज कर लिए, आप पकड़ लो, कल्प्रिट को बैठा दो, 3 साल के अंदर बैठा रहेगा, पैसा रिकवर नहीं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन हाँ, जहाँ बैंक्स की लाइबिलिटी है, टेलीकॉम कंपनीज की लाइबिलिटी है, आईटी सेक्रेटरी के द्वार खुले हुए हैं, हम वहां पर केस फाइल कर सकते हैं कंपनसेशन। Correct, rightly said, Nishchit sir, Parminder sir. Coming from a bank background, working in a bank, बहुत बार ऐसा होता है सर हमारे साथ, फ्राइडे सैटरडे को अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और फिर वो मंडे को आके वहां पे रिपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे हाथ से भी निकल गई होती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग को, उनको पता ही नहीं होता है क्या करना है, कैसे करना है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि जब भी आपके साथ इस तरीके की कोई चीज हो जाए, प्लीज बी अवेयर, उसी समय एक्शन लीजिए।
बैंक्स हैव सम नंबर्स, प्लीज उन नंबर्स को यूज कीजिए, वो करेक्टली उसी पर्पस के लिए दिए गए हैं वो नंबर, उनको यूज कीजिए, अपना पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, अपना पर्टिकुलर कार्ड ब्लॉक करवाइए, अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को इसकी इंफॉर्मेशन दीजिए, बैंक को। किसी भी कंडीशंस में अगर आप बैंक तक नहीं पहुंच पा रहे, इमीडिएटली रीच टू द पुलिस डिपार्टमेंट हु इज कंसर्न्ड फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क। आपकी सोल्यूशन, आपकी बैंक रिलेटेड सोल्यूशन बिल्कुल सॉल्व होगी only if you reach to us on the correct moment and a correct moment of time. There's a next question. It's a very interesting question. The question says, nowadays hackers are very smartly hacking phones, Facebook and bank accounts, and sometimes cyber police is failed to solve the case, and their investigation process is very slow, and victim suffers away. What government is doing for this? I think again this question is directly shooting to Parminder sir and Nishchit sir. Nishchit sir, first we will like to know your views regarding it. देखिए, सबसे पहले साइबर क्राइम को रोकने की लायबिलिटी है विक्टिम्स की। ये मान के चलिए, there is no privacy, there is no confidentiality, there is no secrecy, there is only opportunity for criminals to commit cyber crime. मान के चलें, ये मान के चलें, तो ध्यान रखें, सबसे पहले हम विक्टिमाइज नहीं हो, हम सजग रहें। हम जिस इंस्टॉल कर रहे हैं, जिस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, क्या एप्लीकेशन से बहुत से मेलवेयर्स आते हैं, लिंक्स को क्लिक नहीं करें, विशिंग से बच कर रहें। पुलिस हमारी कॉम्पिटेंट है, हम पहले खुद अपने आप को ऐसे विक्टिमाइज नहीं हो, हम पहले कॉम्पिटेंट बने। पुलिस के पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है कि हम पुलिस एकदम मैजिक स्टिक घुमाएगी और क्रिमिनल को पकड़ लेगी। हाँ, पुलिस असिस्ट कर सकती है, पुलिस के पास बहुत तरीके हैं, बहुत ज्यादा स्मार्ट पुलिसिंग अब होनी स्टार्ट हो गई है। क्रिमिनल्स आज की डेट में छुप नहीं सकते। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां क्रिमिनल्स नहीं पकड़ पा रहे हैं, जहां डेड एंड आ जाता है, तो इंडिया के बाहर का आईपी एड्रेस है और ये है। और हमारे साथ पुलिस के साथ प्रॉब्लम ये है, हमारे पास डाटा नहीं है, थर्ड पार्टी डाटा है। हम बाहर की कंट्रीज से डाटा मांगते हैं, जब तक बहुत देर हो जाती है। उसमें भी ट्रैफिक डाटा, सब्सक्राइबर डाटा, कौन सा डाटा वो देंगे नहीं देंगे, वहाँ के लॉ के इश्यूज हैं, क्या नेशनल इमरजेंसी है, क्या लाइफ थ्रेट है। ऐसे केसेस में जहां मनी इन्वॉल्वमेंट है, उसमें टाइम लगता है, फिर डिपेंड अपॉन एजेंसीज हैं। लॉ बहुत अच्छे हैं हमारे, बस हमें तैयार रहना है, हमें सजग रहना है, कोई हमारे यहाँ इंट्रूजन नहीं हो। देखिए, स्मार्ट टेक्नोलॉजी को स्मार्ट ही टैकल किया जा सकता है। पुलिस कॉम्पिटेंट है, सरकार कॉम्पिटेंट है, हमें थोड़ा सा सजग होना। लॉ है, आपके साथ क्राइम होता है, रिपोर्ट कराएं, कानून है, सारा पैसा मिलेगा। बैंक है, टेलीकॉम है और कंपनीज हैं, उनके लिए लॉ बनाया गया है। पुलिस के साथ कॉपरेट करें, सब डिटेक्ट। एक एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको प्रिजर्व करना। जो भी एविडेंस आपके पास है उसको प्रिजर्व कर करके, यूआरएल है, फेसबुक है, जो भी कंटेंट। ओवर टू परमिंदर। या थैंक यू निशित जी, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पुलिस की डिपेंडेंसी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन पे है। अगर हमारे पास नहीं आती है तो हमें वो केसेस को सॉर्ट आउट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। एनीवे, ऑन अदर हैंड बिग इश्यू ये है कि हम जितना डिले करेंगे उतना ही हमारा केस अनट्रेस होने के चांसेस रहते हैं। बिकॉज आपके पास, आपको अगर किसी ने चीट किया है तो उसने 100% फेक डॉक्यूमेंट्स पे सिम इश्यू कराए होंगे, उसने फेक अकाउंट्स खोले होंगे। तो जितना आप डिले करेंगे, he will destroy that devices, mobile phones, he will destroy the SIM cards, definitely he will debit all the money and close the bank accounts also. तो आप जितना डिले करेंगे, हमारे पास एविडेंस लेने के चांसेस उतने ही कम होंगे। और प्रैक्टिकली जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, आज यदि कोई एफआईआर या कंप्लेंट दर्ज होती है तो अगले 1 महीने के अंदर उसके ओपन होने के या उसके सॉर्टेड आउट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, बाद में नहीं हो पाते। सो जितना जल्दी हो सके, जस्ट कम टू द competent authority, law enforcement officers and make a complaint. Okay, thank you. Rightly said, Parminder sir, it's very important कि हम कुछ मेजर्स को, उनकी प्रोसीजर्स जान लें। कई बार हमें ऐसा पता होता है कि ये लॉज है, ये इस चीज के लिए ये है, पर हमें उनके प्रोसीजर्स पता नहीं होते, किस चीज को किस तरीके से डील करना है। तो
I am very thankful to you three panelists. जिस तरीके से आपने ये डिलीवरी करी, जिस तरीके से आपने कंटेंट को स्प्रेड आउट किया, अवेयर किया हम सभी को, we are very thankful. We have a lot of questions still pending with us, but I will request all our listeners and all our attendees that since we're running out of time today, we will not be able to take questions, but all your questions will be answered. You can write and send all your questions again to us on jcijaipurrainbow@gmail.com. All your questions will be answered there by all the three panelists. I'm sure this was an informative session for you all. You must have known कि किस तरीके से हम बहुत सारी चीजों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे साथ टाइम होती जा रही है, पर हमें अभी तक पता नहीं है। गवर्नमेंट हमें टाइम उसका अवेयरनेस प्रोवाइड कर रही है, पर हम फिर भी उस बात को नहीं समझ रहे। गवर्नमेंट कह रही है हमसे बार बार अपना आईडी पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत कीजिए, अपना ओटीपी किसी को मत दीजिए। बैंक भी समय समय आपको बताती रहती है, सतर्क करती रहती है। गवर्नमेंट भी बता रही है कि कोरोना का टाइम है, प्लीज डोंट स्प्रेड अननेसेसरी मैसेजेस, प्लीज टेक केयर ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, प्लीज बी अगेंस्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, प्लीज मेक श्योर दैट किसी भी तरीके का क्राइम आप नोइंगली या अननोइंगली करेंगे वो एक क्राइम ही रहेगा। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज, I think both the panelists, all the three panelists will agree to me कि ignorance of fact is also a crime. So please be aware about the society. जिस तरीके से आप सभी को जो भी चीजें आज तीनों पैनलिस्ट द्वारा बताई गई हैं, प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स। अगर हम जिस तरीके से इंडिया बढ़ रहा है डिजिटलाइजेशन की प्रगति पे, ये प्रगति तभी हो पाएगी जब इन सारी चीजों को हम अपने दिमाग में रखेंगे, इन सारे रूल्स और रेगुलेशंस हमारे पास अवेयर तरीके से हमें पता होंगे। अगर हम इन चीजों के बारे में अवेयर नहीं है, मोदी जी का सपना हो या किसी भी इंसान का सपना हो, इस देश के हर नागरिक का सपना है कि इंडिया एक डिजिटलाइज्ड कंट्री बन जाए, पर इफ वी स्टिल कंटिन्यू डूइंग साइबर क्राइम्स, I don't think India will become a successful digital world to live in. Let's make this world a peaceful place to live. Let's make this world a cyber crime free place to live in. Stay home, stay safe. I hope you had a wonderful time. I'm thankful to all the panelists, thankful to the president for the opportunity. I hope we are able to do whatever we were asked to do. Thank you so much. Thank you so much to all the panelists. Over to you, Hitesh. Hitesh, if you can hear me, we are done with the session. You can proceed with your following JCI proceedings. I think he is on mute. He's not responding. Thank you all. I think Jai Hind sir. I think Hitesh ji, किसी technical issues की वजह से I think he is not able to reconnect with us. But on the behalf of JCI Jaipur Rainbow, I thank you all. I thank all the panelists for their beautiful piece of information, for their time that they devoted to us. This is a great work you guys are doing. Nishchit sir, you're doing a great work as an advocate. I have seen your profile and you're doing a great job. Parminder sir, as I told you, you are the hero. Thank you very much. You've been saving all of us from cyber crimes. How can I forget Chirag? He's one person you can always count on whenever you want. He's a very tech guy, according to me. Whenever for any queries, for any help, you have the contact details. Please do contact him, Chirag. You did a fantastic job. It was a wonderful interaction with you all. I hope all the participants जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी साइबर क्राइम से रिलेटेड, साइबर लॉ से रिलेटेड, साइबर प्रोसीडिंग से रिलेटेड कि किस तरीके से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें थोड़ा अवेयर रहना है। ये जो पीस ऑफ
इन्फॉर्मेशन आज हमें दी गई है बिल्कुल नए शूज की तरह है कि आप नया शूज खरीदते थे, नए शूज को बहुत दिनों तक पहनते हैं, पर वापस उस नए शू को भी हम पॉलिश करते हैं। तो बिल्कुल ये सेशन उसी की तरह था, ब्रशिंग अप ऑफ द न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे पास पहले थी, उनको थोड़ा सा हमने ब्रश अप किया। बहुत नए शूज की तरह बहुत सारे नए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी हम अपने घर ले आए, अपने दिमाग में ले आए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर. Have a wonderful evening ahead. Thank you so much, all the panelists. Thank you so much, Hitesh. Thank you so much, the beautiful audience with us. From here, we'll all sign off. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind. Thank you, all of you. Thank you. Jai Hind. Thank you. Thank you.